Yes, ready. You want it? ऑनलाईन 2 जण ऍड पण आहे. फारच साकला ऍड पण झाले. अभी बोल. जय जिनेंद्र. अरे यार मी तर चार्जिंग पिन लावली. हॅलो 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 हॅलो. अभिमन्यू काय फारच अभिमन्यू काय येतो ना आवाज? काय तुला काय प्रॉब्लेम काय लावलं झाला आता ना आणि कवर काढावं काय काही लोकांना आपल्याला पाठवायचं होतं. ठीक आहे आपण 5 मिनिटं सतीश सर कुठे पोहोचले? एक मिनिट फोन विचार. किती लोक जॉईन झाले? 6 दिसते समोर पार्टिसिपेंट्स. कौन सा पेज? अबे उरोज को कौन हाके दोगे? ऑडियो म्यूट करा. And maybe this is the way. फुगो कम ले जुटे. सुरू झालं. व्हिडिओ चालू करण्याची गरज नाही. तुमचा व्हिडिओ जाऊन दे. पुढे कोण देखणार आहे आपले? चैताली आडवा में तो छोटो दिख रहा है, उल्टो आडवा में तो उल्टो छोटो दिखे, उबा में तो मोटो दिखे.
कौन है बनियान में बैठे आदमी? नाही आपलं फेस दिसेल बाहेर पडता नंतर नाही तीसरे दुकान में गई एकदम फर्स्ट वाला मैं क्यों पप्पी तू एकदम हरा दिया एकदम मीठा निकला काटियो वो भी कच्चा मैं अब भी घर जा सतीश आहे हेमंत आहे यही निकलू पपीता में आपण येतोय का कमलेश कमलेश हॅलो हॅलो कमलेश माझा आवाज येतोय का हो हेमंत भाऊ येतो आवाज ओके गुड ग्रेट चलो वेरी गुड येतो व्यवस्थित येतो भैया यस संजय भाई जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। वेंकी आएगा है क्या? नहीं वेंकी अभी तक आए नहीं। चलो मैं कॉल करता हूँ उसको। हाँ एक बार आप प्लीज कॉल कीजिएगा। हाँ वेंकी। यस 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 वेंकी टर्न ऑन योर म्यूट, टर्न इट ऑन। Yeah, I'm there. My speaker is on. Can you hear me? Yes, yes. यस सर यस सर Venki, your shirt is matching your curtain color. Yeah. So very nice. So while you are there, let me introduce you to some of our people. Our chairman of Nasik Jito, Paras Bhau Sakla. Paras ji Sakla is on the call. Then Namaste. Kamlesh, Nasik Jito chairman, Paras ji Sakla. Paras Bhau, hello bolo. हेलो और सकला Namaste ji. नमस्ते नमस्कार Then we have Kamlesh Kothari. You might have met him in Jito programs. He is the chief secretary of Nasik Jito. नमस्ते सर वेलकम। Namaste ji. Very well active. Then we have Satish Hiran, who is Vice chairman. vice chairman and last chief secretary of Jito.
and he's transformed the Nasik Jito into something that is something to be very proud of. So Satish Sharan is right there on the screen. Satish, hello, bolo. Hello, good evening, Jai Jinendra. Jai Jinesh. Then we have Hemant Dugard, very famous architect of Nasik, and also he is the convener of this G2G, Good to Great program. That was part of the Jito Apex. It was started by Satish Parag, the MD of the Ashoka Buildcon. So Hemant is convener. Hemant bhai, hello karo. Hello sir, welcome. Hello, Welcome. Bye. और कमलेश जी और कोई होगे तो भाई उनको आप इंट्रोड्यूस करा दो. रश्मि चोपड़ा भाभी है. हाँ, रश्मि जी कहाँ हो भाई स्क्रीन पे? Yeah, I'm come. Dr. Rashmi Chopra is she's a doctor by profession. She is the one who is going to be introducing you, and she's also married to a very well-known cardiologist, Dr. Chopra, Manoj Chopra. So Rashmi is going to do the honors to introduce you today. Yeah. Ajay Bora. Hello. We met at the Can I end, talk to Siddhi? at the program when you came to Nasik. Yeah. I met your wife also there that time, and we had a good Hello. interaction. Can I talk to Siddhi? Can I talk to Siddhi? अजय भाऊ, संजू भाऊ. हाँ अजय है? अजय भाई भी. Yes, yes. Yes, hi. Venki, you know Ajay Bora, right? बेचारे गाड़ी चलाते चलाते ऐड होते. Venki? Yeah, can you hear me? Yes, you know Ajay Bora, my partner in crime at the NEF, is also on the call. Hello, Venki. Hi, Sanjay ji. Jai Ji. Hi, Kamlesh Bhau. See you. Yes, hi. Welcome, sir. Welcome, Venki ji. म्यूट नहीं रे. Ajay Ji, I can't see you. Yes, very good, good. Thank you. अजय भाई तुम्हारा वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करो अजय. हाँ वो नहीं, मेरा बैंडविड्थ लो इधर. वीडियो ऑन किया कम हो जाएगा वो. Yes. Yes, yes. So और कौन है भाई साहब? नरेंद्र जी गोलिया. नरेंद्र जी गोलिया, welcome on Good to Great. Thank you. Thank you. Narendra Ji. Venki, you might know Narendra ji is a Stanford graduate. As we talk about Good to Great, is one of those things. We are not able to hear you. High-tech instrument company, Rushabh Industries. And prior to that from IIT. Yeah, prior to Stanford is from IIT. We also have. They can't hear. You can't hear? Very abhi, now we can hear you. Can you hear me? Yeah. Perfect. And कमलेश भाई और कौन है जिनको इंट्रोडक्शन कराना है? Sanjay ji Burad. Ajay Bedmutta. Ajay Bedmutta is also from Nasik. He also runs the industry. And Sanjay Burad is a very well-known chartered accountant and expert on the GST and other matters. Sanjay Burad, Dr. Sanjay Burad, welcome on board. Namaste Ji. कमलेश भाई कौन है और इंट्रोडक्शन कराइए, जो मैं भूल गया होगा, जो भी होगा. अभी तक जिन्होंने ज्वाइन किया है वो आ गए हैं, बाकी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी 3 मिनट बाकी है. Yes. तो किसी आपको जीतो नासिक में संजू भाऊ की वजह से हमें ये चांस मिला है. और मैंने ये इसके ग्रुप पे डाला था, तुम्हारे डांस के ग्रुप पे. आज का एक फ्लावर डेकोरेशन का वेबिनार फ्री था, आप लोगों ने प्लीज म्यूट कीजिए, अपने आप को म्यूट कीजिए, हमें आवाज आ रहा है. विजय लोहाड़े. मैंने तो 15 मिनट के बाद ज्वाइन किया. मैंने तो आधी घंटे के बाद. अभिजीत म्यूट कर सगळ्यांना. अभिजीत हाँ हो गए, म्यूट हो गए सब. म्यूट. कमलेश बोलो. हाँ, मैं बोला वेंकी जी का हमने वीडियो सुना और अभी लुक एकदम अलग लग रहा है लॉकडाउन के बाद में. Yeah. I have a shaven look. और आज हम समझना चाहेंगे. यस हम समझना चाहेंगे ऐसा ही कुछ हमको भी एक वड़ा पाव मिल जाए ताकि हम भी आगे बढ़े. Very lovely.
आज हमने ये भी बोला है लोगों को हमारे कि आज आईपीएल में छक्के नहीं लगेंगे, आज झूम पर छक्के लगेंगे। अरे लवली I have heard a lot about all of you from Sanjay ji. Sanjay ji बात करते रहते हैं, नासिक का टीम बहुत strong है, and Sanjay himself is a what you call it, a man who is supporting entrepreneurship, and Yes, he sir. has supported Goli in many ways, you know, यस यस यस। during the last 4-5 years time. आफ्टर कोविड हम आपको वापस नासिक में भी देखना चाहेंगे, अभी सबका Always. इंट्रो हो जाएगा। हमारे पास नासिक में भी कुछ है, 5-6 दुकान है नासिक में। हाँ है सर, हमारे बिल्कुल नजदीक है, 2 दुकान है आपके। मॉडल कॉलेज रोड, हाँ ये शरणपुर रोड पर। शरणपुर या है। नासिक 2009 से दुकान है, 2008-9 से चल रहा है। यस 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 यस। हमारे सब बच्चे आपके प्रोडक्ट के फैन हैं। Yeah, Kamlesh, Satish, we can start after 1 minute. Yes. Yes. Abhijit, we start after 1 minute. जिथून आज तो अय्यर आलाय गोली वडापाव. नॉर्म सेट करना तो यार तो खूप असं पाहणं पडेल. हेडफोन लगा नको. So, welcome all and Sadar Jai Jinendra to all the members. I myself, Abhijit Mansarkar, behalf of Jyoto Nasik, I welcome you all on the great platform where we are meeting today. The dynamic personality of India and who has made the Vada Pav a global iconic product, the Venkatesh Ji Iyer. I would like everyone to, we would start the evening today with Naukar mantra. So I would ask everyone for the Naukar mantra. Arihantanam Om Namo Siddhanam नाही पण त्याने काय ना आवाज कमी काय येतोय. I would like to ask Hemanji Dugar to welcome everyone on behalf of the Jai Jinendra. Am I audible? Yes. Hello. Yes, yes, हेमंत बोलो. हाँ, पिछले महीने ही नासिक जितो चैप्टर का शपथ विधि संपन्न हुआ और नए टीम ने कार्यभार भी संभाला और जोरदार प्रोग्राम का संकल्प भी कर लिया. हमारे अध्यक्ष श्री पारस जी साकला और चीफ सेक्रेटरी कमलेश जी कोठारी
इन्होंने उसकी शुरुआत भी कर दी और बोलते ही बोलते 1 महीने के अंदर 3 कार्यक्रम पूरे भी कर दिए। आज का ये चौथा कार्यक्रम जिसकी जिम्मेवारी उन्होंने हमारे गुड टू ग्रेट टीम को दी। हमारे मेंटोर सतीश जी पारक और संजय जी लोढ़ा, इनकी आइडिया से, इनकी कल्पना से आज का ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता श्री वेंकटेश जी अय्यर, फाउंडर CEO ऑफ गोली वड़ा पाव, इनके विचार अगले 1.5 घंटे में हम सुनने वाले हैं। हम उनका नासिक जीतो चैप्टर की ओर से सहर्ष स्वागत करते हैं। आप सभी जीतो के मेंबर्स, हमारे समाज के अन्य मान्यवर, जीतो नेशनल के कुछ सदस्य और बाकी जितने भी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, उन सब का मैं हेमंत दुगड़, कन्वीनर गुड टू ग्रेट कमेटी, सहर्ष स्वागत करता हूँ। जय जिनेंद्र। थैंक यू हेमंत जी। अब मैं संजय जी लोढ़ा से अनुरोध करूंगा कि वो गुड टू ग्रेट का इंट्रोडक्शन दें। Great. Jai Jinendra to all my Jain family brothers and sisters and family members. आप सभी को जय जिनेंद्र। आज के इस टेन्योर में, नए टेन्योर में, जहाँ पे हमारे पारस जी साकला चेयरमैन जीतो नासिक है और कमलेश जी कोठारी हमारे चीफ सेक्रेटरी है, इनके टेन्योर में विद इन 3 वीक्स हमारा आज गुड टू ग्रेट का अपना पहला प्रोग्राम ऑनलाइन वेबिनार जूम पे लॉन्च हो रहा है। तो गुड टू ग्रेट के बारे में मैं कहूँगा, सबसे पहले तो ये गुड टू ग्रेट की जो कमेटी जीतो एपेक्स में लाई थी, हमारे नासिक से शुरुआत हुई थी। हमारे श्री सतीश जी पारक, इन्होंने कॉन्सेप्ट जीतो में 2015 में लाई थी और उसके बाद में इट हैज कंटिन्यूड ऑन एंड इट्स डन ग्रेट प्रोग्राम्स। तो गुड टू ग्रेट, एक वर्ड है इसमें गुड, दूसरा वर्ड है ग्रेट। दोनों में क्या है, मतलब क्या डिफरेंस है गुड टू ग्रेट में? गुड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ग्रेट। जो गुड होता है वो कभी ग्रेट नहीं हो सकता unless you try it. So there are a lot of good people, but there are not so many great people. There are a lot of good companies, but there are not so many great companies. There are a lot of good personalities, but not so many great personalities. होता क्या है हमारे लाइफ में कि we are very happy to be good enough. तो जब हम थोड़े गुड हो जाते हैं तो then we forget everything else and we don't have the dream to be the great. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, थॉमस एडिसन जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया था, उसकी फैक्ट्री में 10 साल के बाद उसने जब पहला बल्ब बनाया था, फर्स्ट बल्ब ऑफ इट्स काइंड इन वर्ल्ड में, तो फैक्ट्री में आग लग गई और जो बल्ब उसने बनाया था, इतनी मेहनत, सालों की मेहनत के बाद वो जल गया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। तो उसको सब शुरुआत और हजारों और एक्सपेरिमेंट वो भी चले गए। तो उसको किसी ने पूछा, भैया अभी तो तुझे शुरुआत जिंदगी की वापस करनी पड़ेगी, तेरा रिसर्च सब चला गया। तो थॉमस एडिसन बोला, यही तो लाइफ है, अगर ग्रेट बनना है लाइफ में तो यही करना चाहिए। मेरी मिस्टेक्स थी वो सब जल गई और मैं अभी इससे और अच्छी शुरुआत करूंगा। तब जाके थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया। तो लाइफ में हम क्या होते हैं, गुड तो बन जाते हैं, बट वो हमारे लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हो जाता है, क्योंकि हम वी आर हैप्पी बीइंग देयर। आगे जाना है तो ग्रेट बनना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे अजय भाई ने थोड़े दिन पहले फैंग प्रोग्राम किया था, उसमें जो कंपनीज थी, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, एक कंपनियां 15 साल पहले बिल्कुल नहीं थी, गूगल भी नहीं थी। उस टाइम पे थी कंपनी जैसे कोडैक थी, जो आज के तारीख में नहीं है, जेरोक्स थी, वो आज के तारीख में नहीं थी, क्योंकि ये कंपनीज में जब गुड बन गई, दे डिड नॉट ट्राई टू बी ग्रेट, दे डिड नॉट ट्राई टू चेंज विद द टाइम्स। तो ये प्रॉब्लम लाइफ में आ जाता है कि हम लोग अचीव कर लेते कुछ और फिर वहां पे हमारी गाड़ी रुक जाती है। एक तो ना मोटिवेशनल पर्ट मिलता है, ना हमारा कॉन्शियस अलाउ करता है, ना हम आगे जाने की उम्मीद रखते हैं। हम सोचते भाई यही हमारा लिमिट है। तो लिमिट के बाहर जाना है, बाउंड्री के बाहर जाना है और हमको ग्रेट बनना है। और हमारे नासिक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्या जीतो में भी, कि जिससे हम ग्रेट बन सकते हैं। अगर वेंकी अगर चाहता था तो 1-2 दुकान खोल के गोली वड़ा पाव जिंदगी भर बेचते रहता था। वो पहले फाइनेंशियल मार्केट में था, तो वो फाइनेंशियल दलाल स्ट्रीट पे उसका दुकान खोल के चालू रखता था। बट ही चोज नॉट टू बी गुड, ही चोज टू बी ग्रेट। और उस ग्रेटनेस के लिए फिर उसने ये जो मॉडल किया, उसका खुद का आज वड़ा पाव जो बनता है वो मैकडॉनल्ड्स की फैक्ट्री में बनता है, पूरी एयर कंडीशनिंग में। और उसने 2 दुकान नहीं बनाई, उसने 300 दुकानें बनाई है। तो उसने सब कैसे किया? बिकॉज ही वांटेड टू बी हैव अ ग्रेट एग्जांपल, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द सोसाइटी। तो ये गुड टू ग्रेट कमिटी से हमको सभी जैन भाई बहनों को
और हमारे यूथ को ये करना है कि भाई हमारा लिमिट हमको ठहराना नहीं, हमको हार्ड वर्क करना है, ड्रीम रखना है, परसिस्टेंस और गोल रखना है और वो आगे जाना है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द ग्रेटनेस। और हमारे सतीश भाई पारक थोड़ी देर में ज्वाइन होंगे अभी फ्लाइट में, तो वो भी बताएंगे व्हाट इज द ग्रेटनेस अबाउट। और हमने बहुत सारे प्रोग्राम अगले 2 साल के रखे हैं। हमारे कमलेश जी कोठारी, सतीश भाई हिरन, पारस जी, हम सब मिलके और आपके साथ में अच्छे प्रोग्राम बनाने वाले इसी लाइन पे, जो फेस टू फेस हो गए, जो यूनिवर्सिटी में हो गए, जो नेटवर्किंग के लिए हो गए। और हमारे अजय जी बोरा भी आज हमारे साथ में जुड़े हुए, जो हमारे प्रोफेशनल फोरम के चेयरमैन है एपेक्स में। तो आप सबके साथ हमको ग्रेटनेस पे जाना है। हमारे नरेंद्र जी गोलिया भी देखो एक अच्छा ग्रेटनेस का एग्जाम्पल है। तो बस इसीलिए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं। आप सबकी सहकार्य की आवश्यकता है और आप इससे जुड़े और अपने जीतो नासिक को एक ग्रेटनेस पे पहुंचाना है। तो ये मैं कहूंगा गुड टू ग्रेटनेस के बारे में, और बाकी का एग्जाम्पल फिर हमारे सतीश जी पारक जब आएंगे फ्लाइट से उतरने के बाद तो देंगे। एंड वेंकी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू जीतो फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड जय हिंद, जय महावीर। थैंक यू संजय जी। अब मैं रश्मि जी चोपड़ा से अनुरोध करूंगा कि वो आज के हमारे स्टार प्लेयर वेंकटेश सर को इंट्रोड्यूस करें। रश्मि मैम, आप अनम्यूट करें आपको। Jai Jinendra, it's my pleasure and privilege to introduce Mr. Venkatesh Iyer today. Welcome, sir. Venkatesh Iyer is a founder and CEO of Goli Vada Pav, India's largest ethnic fast food chain, having 300 stores spread across 100 cities and 20 states. From finance to food, with over 15 years of experience in corporate finance and investment banking, Venkatesh Iyer has been instrumental in helping entrepreneurs translate ideas into storyboards, using his unique strength and critical thinking, imagination, and communication. One fine day, he decided to change his course and create what is called as very creative food revolution. His ultimate dream has been corporatization of humble vada pav and see vada pav as a brand amongst the pizzas and burgers of the world. He is a visionary par excellence who sees things beyond the obvious, and it is his attitude that made his dream turn into reality. He has been invited as an inspirational speaker and delivered more than 400 talks on entrepreneurship in India and abroad, and at various entrepreneurial summits and business schools like Harvard, IMD Switzerland, ISB Hyderabad, etc. His book, My Journey with Vada Pav, was published by CNBC TV 18 in 2016 and been a bestseller. Thank you. Yeah. रश्मि जी, बहुत अच्छा इंट्रो किया आपने, और आप हमेशा की तरह आज बहुत अच्छी लग रही है। और मैं ऐड करना चाहूंगा, he also had a chance to be on the KBC. He met Mr. Amitabh Bachchan, had a one-to-one with him. So Venki ji, welcome on board. I'll move it back to the anchor of the program. Thank you, Sanjay. Thank you, Rashmi. Now we request the star player of the day to take over and guide us through how to be go beyond just being good and being great. Thank you, and thank you, Jito Nasik, for this invitation, and thank you, Sanjay, for bringing me back to the forum of communication and talks. I had taken a break from all of it. Sanjay is a great friend, and we all know Sanjay is an international traveler and a global networker and a global entrepreneur. He has been a friend and supported Goli, connected us to me to a lot of people, and played a very important role in Goli's journey. So thank you, Sanjay, and thank you, Jito Nasik, for inviting me. And to start with, I would always say, wherever people are there, I want to say that people have to become enthusiastic. What is it? Enthusiastic. From between dreams to destiny, there is one beautiful thing. That is energy. अगर आप सपना देख रहे हो और सपने को हकीकत में लाना चाहते हो, तो आपका ड्रीम और डेस्टिनी के बीच में क्या होना चाहिए? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंथुसियाज्म. एंड एंथुसियाज्म का एक ब्यूटीफुल मीनिंग है लैटिन में. एन मीन्स इनसाइड,
तू मीन्स भगवान, अंदर का भगवान को जगा दो तो आप कोई भी सपना को अचीव कर सकते हो. That's what I want to say. Whatever, today we will be on a Zoom call where everybody is sitting at home or office, but I want you to feel enthusiasm. And to feel enthusiasm, one best thing is right now on the mic, all of you put the mic on and clap for the next 20 seconds. And that will bring a lot of energy in all of you. All of you switch on the mic and clap like it. मैं कैसे एनर्जी क्रिएट One important thing that we all have to understand that we are energy beings, you know. हमारा thought energy को अगर material energy में convert okay, unmute कर रहा हूँ. Okay, so we all have to see to convert our dreams into destiny. We have to show that energy, and the best way to energize us is to keep on clapping every 5 to 10 minutes wherever you're there. Okay, and after enthusiasm, I want to come to the most important thing is inspiration. And I think we all need inspiration in life. We all go to schools, we all go to colleges, we collect a lot of information. But information is like that petrol in the car. जब तक गाड़ी का पेट्रोल या गाड़ी का इंजन को चाबी नहीं लगता है, गाड़ी आगे नहीं जा सकता है. जब तक गाड़ी का इंजन को चाबी नहीं लगता है, गाड़ी आगे नहीं जा सकता है. The same way we need inspiration, that चाबी लगता है. And inspiration can come from a lot of things. But for me, alchemist Paulo Coelho. And alchemist Paulo Coelho is a great inspiration for me. And Paulo Coelho's this beautiful sentence: you have a dream, the dream has come in the womb of the universe. It is the responsibility of the universe to fulfill the dream. The universe conspires to help you achieve your dream is the most important thing for us. The second most important thing, inspiration, is Mahatma Gandhi's: you find the purpose, the means will follow. That is the second most important inspiration. And afterwards, the most important thing is Richard Bach, Jonathan Livingstone the Seagull. Richard Bach, Jonathan Livingstone the Seagull is the story of a small little seagull which wanted to fly like an eagle. It is the story of a small little seagull which wanted to fly like an eagle. And seagulls normally बहुत ऊंची हाइट पे नहीं उड़ते. Seagulls का काम होता है 10 से 15 फीट की ऊंचाई पे उड़ना और अपना फैमिली को संभालना या अपना परिवार को संभालना. That is how seagulls are. They live their life for food. और फिश को जाके ओशन का बेड में जाके जो फिशरमैन का बोट होता है, वो डेड फिशेस के लिए वो लोग उड़ते हैं, उठाते हैं और खाते हैं और सी शोर में अपना जिंदगी बिता देते हैं. बट उनकी उड़ान होती है 10 से 15 फीट की ऊंचाई. और उनमें से एक होता है जोनाथन. एंड जोनाथन लुक्स एट द ईगल एंड से I too want to fly like an eagle. Jonathan looks at the eagle and say, I too want to fly like an eagle. And normally eagles fly at say 100 feet to 200 feet high. And Jonathan, what does he do is, am I audible and clearly visible? Yes, yes. Yes, sir. Yes. So Jonathan looks at that entire thing and Jonathan says, Ki, no father, I also want to fly like an eagle. I want to fly like an eagle. Am I on full screen? Am I on full screen? Yes, sir. Okay. And he says, I want to fly like an eagle, 100 feet की ऊंचाई पे. So all his friends and family says, हम छोटे से पक्षी है. You know, we have to fly, middle class लोग है. एक छोटा सा धंधा कर लो, अपना फैमिली को संभाल लो. मे बी पुणे में एक घर, मे बी बॉम्बे में एक घर, मे बी एक होंडा सिटी की गाड़ी, एंड मे बी स्विट्जरलैंड में जाके हॉलीडेज कर लो और फेसबुक में बीवी और बच्चों के साथ अपना फोटो डाल दो, जिंदगी का मकसद पूरा हो गया. जोनाथन बोलता है, नो डैडी, मेरा मकसद कुछ और है, मुझे ईगल के जैसे उड़ना है. Like a small boy from Nasik, he started a small business, and his parents, his family says, एक छोटा सा धंधा कर लो, बस हो गया यार. एक इंपोर्टेड गाड़ी खरीद लो, एक नासिक में बंगलो बना दो, बहुत हो गया. बट वो लड़का बोलता है, नहीं डैडी, मुझे बड़े सपने हैं. मुझे वो इन्फोसिस का नारायण मूर्ति जैसा बड़ा कंपनी बनाना है, मुझे टाटा जैसा बड़ा कंपनी करना है, मुझे मैकडोनल्ड जैसा बड़ा एम्पायर बनाना है. बट इस फैमिली एंड फ्रेंड्स सेज, अरे यार बड़े बड़े सपने छोड़ना छोड़ दो और एक छोटा सा सपना देखो, अपना परिवार संभाल लो, हम छोटे लोग हैं. एंड दैट्स व्हेन जोनाथन, ये क्लाइम्स ए फिक्शनल माउंटेन. ये जोनाथन की कहानी है, उसको मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ. वो समुद्र के तट पे एक फिक्शनल माउंटेन है, और उस माउंटेन पे वो चढ़ता है और वहां से एक 2 घंटा 3 घंटा he climbs and it goes to the top of that mountain and from there he looks at the eagle and वहां से ईगल को देखता है. तो ईगल क्या करते रहता है?
He's flying at 100-150 feet high. Jonathan looks at the top mountain, which is basically maybe 500 feet high. And from there he says, can I give up my security of my small family business? Can I give my security of my job? And मैं पहाड़ पे अपने आप को छोड़ दूं. And इस 1000 feet high पे मैं अपने आप को jump कर सकता हूं. And Jonathan एक दिन देखता है, 2 दिन देखता है, 3 दिन. But to throw away his secured family business and बड़ा सपना देखना is like dealing with uncertainty and ambiguity. Both risk है. एक दिन Jonathan gathers the courage and throws himself from that 1000 feet high. And when he throws him from that 1000 feet high, he comes crashing. वो brick like ocean के ऊपर खट करके crash होके गिर जाता है and बेहोश हो जाता है. Because 1000 feet पे उड़ना अलग बात है. नासिक में एक छोटा सा बिजनेस चलाना और देश भर में 500 दुकान चलाना एक अलग बात है. तो suddenly Jonathan crashes. He doesn't know how to handle it. But सपना देखा है तो सपने के पीछे वो बह जाता है. And बेहोश होके वो समुद्र के तट में उसको वेव्स लाके छोड़ देती है. तो उसका परिवार, उसके दोस्त लोग आते हैं, बोला था ना ये बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दो, हम छोटे से मिडिल क्लास है, एक छोटा सा सपना और छोटा सा कारोबार. एंड दैट्स व्हेन जोनाथन ओपन्स द आईज और फिर से एक बार 1000 फीट की माउंटेन पे चढ़े जाता है. एंड वहां से सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम 100 बार कूद लेता है और एक दिन जोनाथन ईगल जैसा उड़ता है. द समरी ऑफ द स्टोरी इज, जब बड़े सपने देखते हो इट्स नॉट इजी. यू विल फेल मेनी टाइम्स एंड वन डे by learning through all that mistakes, you'll start flying at that 100 feet high. And you too can become a McDonald's. You too can become a Cadbury's. You too can run a business like Infosys. That's what we wanted to tell. So I think for inspiration के लिए सब जन अपने अपने जगह पे बड़ा तालियां मार दो. Entrepreneurs के लिए सबसे बड़ा है inspiration. Inspiration. We have to keep on finding inspiration because हमारे लिए challenges आए. The next is idea. Inspiration हमारा first lesson है. Second idea. So idea. And my example how I got into the idea. My mobile ringtone, हमारा मोबाइल रिंगटोन था ना उस जमाने में 2004 में, was this famous song, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी. And I used to start the day with the Colgate paste, हम हिंदुस्तानी, एक जिलेट ब्लेड हम हिंदुस्तानी, एक लक्स सोप हम हिंदुस्तानी, एक नोकिया का मोबाइल हम हिंदुस्तानी उस जमाने में, क्रॉस का पेन, नाइकी का जूता. और मैं सोच रहा था इसमें हिंदुस्तान कहाँ है भाई, इसमें हिंदुस्तान कहाँ है भाई. तो समवेयर आई फेल्ट मुझे एक इंडियन ब्रांड बनाना है, एक इंडियन ब्रांड बनाना है. सब जन बोलते हैं ब्रांड बनाना हमारी बात नहीं है. ब्रांड किसकी बात है? हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, कॉलगेट पॉमोलिव. हम तो छोटे से है इंडिया में, टिपिकली ट्रेडिंग कर लो, एक छोटा सा बिजनेस कर लो, मैन्युफैक्चरिंग छोटा सा कर लो. ब्रांड सब मल्टीनेशनल कंपनी की बात है. दैट्स व्हेन आई फेल्ट आई हैव टू डू ए इंडियन ब्रांड. बट ब्रांड में करे तो क्या करे? कपड़ा करे, टेक्सटाइल, वैन हुसैन, लुई फिलिप, जो भी है. सोप करे, यूनिलीवर है. शैम्पू करे, यूनिलीवर है. पेस्ट करे, कॉलगेट है. तो ब्रांड में करे तो क्या करे? उन दिनों केलॉग्स के सीईओ मेरे नेबर थे एंड वो सडनली हमको सेंड ऑफ पार्टी दिया उन्होंने कि केलॉग्स छोड़ के वो अमेरिका जा रहे थे. तो उनको हमने पूछा इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी केलॉग्स क्यों छोड़ रहे हो? तो समवेयर उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया, बट उन्होंने हिचकिचाते हुए बोला कुछ भी करो यार, हिंदुस्तानी आदमी देसी खाता है. एक सेंटेंस बोला, कुछ भी करो हिंदुस्तानी आदमी देसी खाता है. वो भले ही वैन हुसैन का शर्ट पहन लेगा, क्रॉस का पेन रखेगा, नाइकी का जूता पहनेगा, बट खाने के लिए उसको एक वीकनेस है. क्या वीकनेस है? स्पाइसी इंडियन फूड, गर्मा गर्म मसालेदार खाना. ये इंडियन का वीकनेस है. एक पर्टिकुलर सेंटेंस ने मेरा दिमाग खोल दिया. वो बोलते हैं ना, दिमाग का बत्ती खुल गया. एंड आई फेल्ट what is frustrating for a multinational food company CEO maybe is an opportunity for us. Yes, 100 crores plus population है इंडिया में. इवन 50 करोड़ पॉपुलेशन को टारगेट कर लो, साल में एक बार 10 रुपए का आइटम खिला दो, 500 करोड़ का अपॉर्चुनिटी. दैट इज हाउ एंटरप्रेन्योर्स थिंक. अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट आई से इज इंस्पिरेशन, सेकंड आई से इज आइडिया, थर्ड आई से इज अपॉर्चुनिटी. इफ यू वांट टू थिंक बिग एंटरप्रेन्योरशिप यू हैव टू थिंक अपॉर्चुनिटी. हाउ बिग इज द मार्केट. एंड हमने सोच लिया कि इंडिया में कंज्यूमर ब्रांड और फूड ब्रांड बनेगा, बट फूड में करेगा तो क्या करेगा? हाउ एंटरप्रेन्योरियल आइडिया डेवलप होता है, हाउ द आइडिया कीप्स ऑन डेवलपिंग. फूड में करे तो क्या करे, करे तो क्या करे? फूड में क्या कर सकते हो? नॉर्थ ईस्ट आलू पराठा कंट्री और समोसा का कंट्री है, नॉर्थ में चले जाओ. साउथ में जाओ तो इडली डोसा, वेस्ट में जाओ तो रगड़ा पेटिस भेलपुरी. करे तो क्या करे? बिकॉज इंडिया इज नॉट वन कंट्री. यहाँ तो 30,000 भगवान है, यहाँ पे इतने धर्म है, इतने लैंग्वेजेस है,
इतने खाने हैं, तो इंडिया को यूनाइटेड कैसा किया जा सकता है? इंडिया इज अ मल्टीपल कंट्री एंड दैट हैज कम टुगेदर लाइक यूरोप है, एक इंडिया यूरोप से भी बड़ा है, तो इतने बड़े देश में एक कॉमन खाना क्या हो सकता है? कॉमन खाना क्या हो सकता है? आई वाज स्टिल थिंकिंग, मद्रासी होने के नाते इडली डोसा, स्टिल थिंकिंग बिरयानी हैदराबादी, बट आई वाज नॉट थिंकिंग व्हाट आई शुड डू, बट आई वाज नॉट कन्विंस्ड। एंड उन दिनों एक दिन वीटी स्टेशन से बाहर आके मैंने देखा, शाम को बाहर वापस आते समय मैकडोनल्ड का एक बड़ा दुकान खुला था 1999 में, और एक 40 फुट का बैनर था, 40 फुट का बैनर था, एंड उसमें एक बड़ा बर्गर का फोटो था, बड़ा बर्गर का फोटो था। एंड उस बर्गर के फोटो के नीचे मैंने देखा एक आदगाड़ी वाला था, और आदगाड़ी वो बोलता है ना मुंबई का काका, बनियान और लहंगा पहन के, हम लोग टिपिकली बोलते हैं चप्पन टिकली बनियान, गरीब आदमी का बनियान में होल्स होता है, तो हम लोग कॉलेज के दिनों में उसको चप्पन टिकली बनियान बुलाते थे। बनियान लहंगा बना के वो वड़ा पाव बना रहा था। जब वो वड़ा पाव बना रहा था, समवेयर वो मैकडोनल्ड का एम देखा और बड़ा बर्गर का फोटो देखा। मैंने शाम के 6 बजे के टाइम में वो वड़ा पाव लिया, एंड जैसे ही वो बर्गर का फोटो 40 फुट का देखा, तो कहीं तो भी दिमाग का बत्ती फिर से बुझा, होता है दिमाग का बत्ती जल गया। एंड आई फेल्ट, ये तो जुड़वा बाई की कहानी है। क्या बोलते हैं? जुड़वा बाई की कहानी है, बर्गर और वड़ा पाव। व्हाट इज वड़ा पाव? वड़ा पाव इज एनीथिंग बिटवीन पाव। What is burger? Anything between bun. वड़ा पाव में चटनी होता है, बर्गर में मायोनीज होता है, एंड वड़ा पाव में चिली होता है और बर्गर में लेटिस होता है। तो किधर तो लगा ये तो जुड़वा भाई की कहानी है। हाँ, एक वड़ा पाव और बर्गर, एक भाई जो होता है ना, जुड़वा भाई की कहानी बोलते हैं ना, 1970 का राम और श्याम की मूवीज, पुराने 2 जुड़वा भाई होते हैं, मेले में बिछड़ जाते हैं। एक भाई अमेरिका चला गया, 40,000 प्लस आउटलेट, दूसरा भाई आज भी गरीब है मुंबई के फुटपाथ में, एंड वो है वड़ा पाव। तो कहीं तो भी मुझे लगा अगर बर्गर इतना बड़ा ब्रांड हो सकता है, तो वड़ा पाव भी हमारा बहुत बड़ा ब्रांड हो सकता है। एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट मैं वड़ा पाव का ब्रांड बनाऊंगा। तो आइडिया कैसा डेवलप होता है वो मैं बताता हूँ। इट वेंट थ्रू मेनी स्टेजेस, एंड उस दिन मैंने ठान लिया अगर बर्गर इतना बड़ा ब्रांड हो सकता है तो वड़ा पाव भी ब्रांड हो सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ आइडिया आई वांटेड टू से, The next stage of idea is why. एक बार एक एंटरप्रेन्योर ने एक आइडिया लाया, वड़ा पाव बनाना है या स्कूल खोलना है या इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस करना है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, वाई के पीछे बहुत बार सवाल होना पड़ता है, वाई वड़ा पाव। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा आंसर मुझे मिलने लगा जब वाई पूछते हो। इंडिया इज चेंजिंग, इंडिया बहुत बदल रहा है। इन द लास्ट 15-20 साल इंडिया बहुत बदल गया है। 1995 का इंडिया और 1990 का इंडिया और 2020 का इंडिया बहुत चेंज हो गया। इंडिया इज चेंजिंग, वुमन इज वर्किंग, women has started working across India like anything, and the kitchen is shrinking. आज सब आप बैंगलोर जाओ, पुणे जाओ, हस्बैंड एंड वाइफ वो दोनों आईटी कंपनी में काम करते हैं, गुड़गांव में जाओ, एंड women has started working, kitchen is shrinking, and the food has to come from outside. Imagine एक पुणे का एक लड़का है जो इंजीनियरिंग करके पुणे में काम करता है, इन्फोसिस में, उसकी बीवी भी इन्फोसिस में काम कर रही है, दोनों सवेरे से शाम काम करता है। लड़का नासिक है, संडे का दिन नासिक से उसके 30 दोस्त लोग आ जाते हैं खाने के लिए। उसकी जरूरत होगी उसकी बीवी को बोलने के लिए सबके लिए खाना बनाओ, उसकी जरूरत नहीं होगी। अगर जरूरत बताया तो डिवोर्स हो जाएगा। तो फूड हैज बिकम ए सोशल प्रॉब्लम इन अर्बन सिटीज। आर यू ऑल विथ मी? तो एज ए एंटरप्रेन्योर वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी वी डेवलप ए बिजनेस। दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप। एंड समवेयर मुझे लगा कि इंडिया इज चेंजिंग, वुमन इज वर्किंग, किचन इज श्रिंकिंग, एंड द फूड इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। But the most important thing, the food has to be fast food. सबके लिए टाइम है बट खाने के लिए टाइम नहीं। सबके लिए टाइम है बट खाने के लिए टाइम नहीं। एक जमाने में बड़ा ताली बैठ के खाते थे। आज बम्बई जाओ, पुणे जाओ, औरंगाबाद जाओ, नासिक जाओ, सब जगह जाओ, लाइफ हैज बिकम वेरी वेरी बिजी। एंड एक छोटा सा बच्चा भी स्कूल में जाएगा, उसका स्कूल के बाद 4 कोचिंग क्लास होता है, कुमॉन क्लास, ये क्लास, वो क्लास। बच्चे को बोल दो बेटा मिलते हैं, वो 6 साल का बच्चा भी बोलेगा अंकल आज बिजी है, संडे मिलते हैं। So that's how the whole life has become. Life has become very busy and the food has to be fast. तो 5 मिनट में आप बंबई में, पुणे में, किधर तो भी नासिक में 50 लोगों के लिए क्या खाना दे सकते हो? 5 मिनट में 50 मसाला डोसा कस्टमर को सर्विस कर पाओगे? नहीं। 5 मिनट में 50 मसाला डोसा नहीं बन सकता है। 5 मिनट में 50 ग्रिल सैंडविच नहीं बन सकता है। बट 5 मिनट में बंबई के फुटपाथ में कड़े से 50 वड़ा जरूर निकलता है। So it falls into your definition of a fast food. What is it? Fast food. Second, it is a finger food. Second, what it is? A finger food. इडली और डोसा है तो सांबार चटनी लगता है, सांबार और चटनी लग गया तो
टेबल चेयर लगता है. अगर टेबल और चेयर आ गया तो क्या हो जाता है? रियल एस्टेट कॉस्ट गोस अप. सिटिंग दे दिया तो इमेजिन आपका नासिक का कॉलेज रोड का भाड़ा है 50,000 75,000. ओके, और वहां पे हमने सिटिंग गोली वड़ा पाव का दुकान डाल दिया और उधर 30 जन आके बैठ रहे हैं और उसमें 15-20 रुपया का आइटम खा रहे हैं और 18 साल के यंग लवर्स आके बैठ गए, 2 घंटा वड़ा पाव खाते खाते रोमांस कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस का तो बैंड बच जाएगा. तो रियल एस्टेट कॉस्ट इज नॉट एट ऑल अफोर्डेबल. तो समवेयर फूड हैज टू बी फास्ट फूड, सेकंड इट हैज टू बी फिंगर फूड. अगर फिंगर फूड नहीं है, अगर डोसा और इडली है तो क्या लगता है? सांबार चटनी. सांबार और चटनी आ गया तो क्या लगता है? टेबल चेयर. टेबल और चेयर के साथ क्या लगता है? प्लेटर स्पून. तो अगर प्लेटर स्पून आ गया, सांबार चटनी आ गया, टेबल चेयर आ गया तो रियल एस्टेट कॉस्ट गोस अप. वड़ा पाव में वो कुछ भी नहीं है, रैपर में लगा के दे दो और वो चला जाता है. सो फास्ट फूड. सेकंड इज मोबाइल फूड. ट्रेन में लटकते लटकते खा सकते हो, रिक्शा चलाते चलाते खा सकते हो, कार चलाते चलाते. थर्ड इज फास्ट फूड, फिंगर फूड, एंड थर्ड इज मोबाइल फूड. ट्रेन के बाहर लटकते लटकते. सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट which I felt was common between burger and vada pav. Why vada pav का ये आंसर था, why इडली नहीं, why डोसा नहीं, why सैंडविच नहीं. So I think as entrepreneurs we have to ask this 200 whys to define what is our business model. So that's why we chose vada pav. बहुत जन मुझे बोलते हैं वेंकी वड़ा पाव बम्बई के बाहर चलेगा क्या? तो मैं बोला क्यों? तो बोलते हैं नहीं, वड़ा पाव तो सिर्फ बॉम्बे, पुणे और थोड़ा सा नासिक में उस जमाने में चलता था. इवन औरंगाबाद में वड़ा पाव और नागपुर में वड़ा पाव नहीं था उस जमाने में. तो somewhere I felt as entrepreneurs we should not go by form, we should go by content. What is content? वड़ा पाव के अंदर पोटैटो और बेसन है. क्या है? पोटैटो और बेसन है. हल्दीराम ने थोड़ा सा बेसन को तेल में डाला और मसाला लगाया तो क्या हो गया? 1000 करोड़ का एम्पायर खड़ा हो गया. वी इंडियंस लाइक बेसन लाइक एनीथिंग. वड़ा पाव के अंदर क्या है? पोटैटो है. हाँ, पोटैटो तो सबको अच्छा लगता है. पोटैटो इज अ वेरी यूनिवर्सल फूड. एंड लेज में क्या है? पोटैटो. फिंगर चिप्स में क्या है? पोटैटो. आलू पराठा में क्या है? पोटैटो. समोसे में क्या है? पोटैटो. मसाला डोसा में क्या है? पोटैटो. साउथ हो जाए, नॉर्थ हो जाओ, इंटरनेशनल फूड हो जाओ, पोटैटो है. अगर किसी ने बोला मुझे पोटैटो पसंद नहीं तो हम बोलते हैं उसको खिड़की के बाहर फेंक दो. ओके, जैन लोग मुझे माफ कर दो. ओके, सो पोटैटो इज गॉट अ वेरी यूनिवर्सल फूड. पोटैटो इज गॉट अ वेरी यूनिवर्सल फूड लाइकिंग. इट्स लाइक आई फेल्ट वड़ा पाव, ये सब को देख के मुझे लगा वड़ा पाव इज लाइक अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन को बेचने की जरूरत नहीं है. वो 60 साल में अगर फेल भी हो गया केबी अपना क्या बोल के एबीसीएल करके और पॉलिटिक्स में जाके वो केबीसी होके फिर से खड़ा हो जाता है. तो वड़ा पाव में वो दम है, अमिताभ बच्चन में वो दम है. वो 80 साल में भी जिंदा रहेगा. और इतनी केबीसी या किसके थ्रू. सो आवर प्रोडक्ट शुड बी लाइक अमिताभ बच्चन. अंदर एक दम होना चाहिए. अगर उसको बहुत पुश करना पड़ेगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अंबानी का बेटा होना पड़ेगा और 500-600 करोड़ खर्चा लगेगा, कैपिटल लगेगा. सो एज स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स वी हैव टू थिंक फ्रूगली. प्रोडक्ट में पावर होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड ऑन वड़ा पाव. आई थिंक प्रोडक्ट डिसीजन ले लिया तो वी शुड ऑल क्लैप. व्हाई? एंड प्रोडक्ट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एवरीबडी शुड हैव अ क्लैप. कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज? एंड जो ने कैमरा बंद किया कैमरा खोल दो. जिन्होंने कैमरा खोल दो पर्दे के बाहर आ जाओ तो मजा आ जाएगा. सुनने में मजा आता है. Everybody clap, everybody clap. एंटरप्रेन्योर के लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एवरी टाइम सेलिब्रेट करना चाहिए. इतना सेलिब्रेट करना चाहिए. यू नो, ओके, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो नाउ आफ्टर दिस आई वुड से ब्रांड का हमने वड़ा पाव डिसाइड किया तो ब्रांड नेम क्या होना चाहिए? ब्रांड नेम क्या होना चाहिए? तो ब्रांड नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल माय फ्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग, एचटीए, लिंटास, वो लोग क्या बोलने लगे? वेंकी अंग्रेजी नाम होना चाहिए. क्या नाम होना चाहिए? अंग्रेजी. बिकॉज अंग्रेजी नाम बहुत इंस्पिरेशनल है, एस्पिरेशनल है. क्या होता है जब भी ब्रांड बनाओ, मोस्ट ऑफ द बिग ब्रांड इज फिरंगी नाम. तो हमने सबका सुन लिया बट बोला अगर एक नल्लीस करके साउथ में साड़ी है, तुमने सुना है नल्ली साड़ी या पानेरी साड़ी सुना है? हाँ, नल्ली साड़ी सुना है. नल्ली साड़ी अगर हमने सुना है तो नल्ली साड़ी को हम अगर जूली साड़ी बोलेंगे चलेगा क्या? पानेरी साड़ी को जूली साड़ी बोले चलेगा क्या? अंग्रेजी नाम नहीं. सेम वे अगर हल्दीराम का भुजिया को हम सैम्स भुजिया बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. मुर्गन सिडली को पीटर सिडली बोल सकते हैं? नहीं. वो
वो एक फेमस चिवड़ा है ना नासिक का, या इसका क्या बोलते हैं चिवड़ा, कोंडाची। कोंडाची चिवड़ा को हम सैम्स चिवड़ा बोल सकते हैं, नहीं बिकेगा, यू नो। दैट्स व्हाई आई सेड अंग्रेजी मारी होता है और देसी कारी होता है, अंग्रेजी मारी होता है और देसी कारी होता है। तो अगर इंडियन ब्रांड है तो इंडियन नाम होना चाहिए। एंड वड़ा पाव कहाँ पैदा हुआ? मुंबई में पैदा हुआ। तो अगर मुंबई में पैदा हुआ तो मुंबई का एक नाम है, क्या नाम है? टिपिकली मुन्ना भाई का संजय दत्त, रंगीला का आमिर खान और सत्या का बिकू मात्रे। क्या भाषा होता है? पुड़ी, रापचिक, आइटम, मुन्ना भाई, गोली, and that's why we call it गोली वड़ा पाव। So somewhere I think that naming is very very important। अगर मैंने गलती से अंग्रेजी नाम देता तो कनेक्शन नहीं बनता था। वड़ा पाव मुंबई से आया है और बॉलीवुड मुंबई से आया है। ऑल ओवर इंडिया लोगों ने बॉलीवुड देखा है और बॉलीवुड की अपनी एक भाषा है। एंड स्पेशली मुन्ना भाई ने तो बॉलीवुड का, मुंबई का टपुरी भाषा को बहुत फेमस कर दिया। तो जिस तरह हमने गोली नाम रखा तो कंज्यूमर कनेक्ट हो गया। Now I think naming was very very important। Now this is what we call the theory और माइंड में एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है before he launches a business। This is all in the mind, but the real business is in the market। Mind to market is very very important। माइंड में तो सब बिजनेस अच्छा दिखता है एक्सेल शीट में, बट जब मार्केट में जाते हो तो बैंड बजता है। क्या बोलते हैं हम? बैंड, स्पेशली कंज्यूमर बिजनेस में, बिकॉज वी डोंट नो कंज्यूमर हाउ विल रिएक्ट। तो माइंड टू मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कॉलेज में कोई लड़की से प्यार हो गया तो गुलाब लेके खड़े हो गए, तो सिर्फ गुलाब लेके और चिट्ठी लेके खड़े हो गया, दैट इज इन द माइंड। बट जिस दिन आप उसको गुलाब दोगे और चिट्ठी दोगे तो आपको समझता है थप्पड़ मिलेगा या प्यार मिलेगा। तो गोइंग टू मार्केट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक 70 or 80% of the business। 20% of the business is all what I said, but 80% is what the reality। और हमने कल्याण में हमारा पहला दुकान खोल दिया, लक्ष्मी मार्केट, जहाँ पे काफी भीड़ थी। तो एक सिंपल स्टडी था, लोकेशन अच्छा है तो बिजनेस अच्छा होगा। अगर नासिक आना है तो पहला दुकान कॉलेज रोड में खुलना चाहिए, है ना। औरंगाबाद जाना है तो आगे कॉलेज रोड में खुलेगा, यू नो। अगर हम बैंगलोर गए तो ज्योति निवास कॉलेज। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट लोकेशन। तो हमने, और भाड़ा कम होना चाहिए। बॉम्बे का भाड़ा 1 लाख, नासिक हमारा कल्याण का भाड़ा 15,000। तो 15,000 का भाड़ा से हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक दुकान लक्ष्मी मार्केट में डाल दिया। और लक्ष्मी मार्केट में शाम को खड़े रहोगे तो आपको भीड़ लेके जाएगा 2 किलोमीटर आगे, इतना भीड़ था। और पहला दुकान आध गाड़ी लगे थे 15-20 वड़ा पाव वाले के वहां पे, और हमने एक ब्यूटीफुल स्टोर, रेड एंड व्हाइट टाइल्स लगा दिया, बहुत बढ़िया फोटोग्राफ्स लगा दिया, लाइट्स अच्छा लगा दिया, यूनिफॉर्म डाल दिया, स्टेनलेस स्टील का इक्विपमेंट डाल दिया। कंज्यूमर रोड में देख रहा था आध गाड़ी में बनियान और लहंगा पहन के बेच रहे हैं, गंदगी फैला हुआ है और अंधेरा है, उसके सामने हमारा दुकान चमक गया। कंज्यूमर को वैल्यू फॉर मनी दिख गया। और इसमें कंपैरिजन, व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन। रोड में गंदगी है, टेस्ट है, बट हमारे दुकान में टेस्ट भी था, प्राइस भी सही था, और क्लीनलीनेस और हाइजीन था, और चमक रहा था। तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन इन कंज्यूमर बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन हमने किया 2 महीने में सब आध गाड़ी चले गए। पहला दिन ही हमारा स्टॉक पूरा खत्म हो गया, लाइट, यूनिफॉर्म, स्टेनलेस स्टील। सो वी शुड नो हाउ टू कनेक्ट एंड गिव द वैल्यू प्रोपोजिशन टू द कंज्यूमर आंखों के से। एंड इमीडिएटली कल्याण में एक दुकान खुला। कल्याण के बगल में उल्लासनगर है, एंड उल्लासनगर इज फुल ऑफ सिंधी, और हमारे सिंधी भाई को बिजनेस तो नींद में भी सूंघ जाते। और विद इन ए वीक उल्लासनगर के सिंधी ना के हमको 400-500 इंक्वायरीज आ गया। हमारा माइंड में था फ्रेंचाइजिंग, बिफोर दैट इट ऑल केम, एंड विद इन अ मंथ्स टाइम हमने एक फ्रेंचाइजी, आई यूज्ड टू वर्क फॉर ए कंपनी कॉल्ड एपटेक 1990 में, एप्पल कंप्यूटर्स और एपटेक। तो एपटेक का एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट था हमारे पास। तो हमने वो एग्रीमेंट, यू नो, पहला जॉब रहता तो एग्रीमेंट छिपा के रखते हैं, नो, 20-20 साल। तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट मेरे पास था, तो उसमें जहाँ भी एपटेक लिखा था उसको हमने गोली वड़ा पाव किया, और जहाँ भी कंप्यूटर एजुकेशन लिखा था उसको वड़ा पाव बना के हमने सब फ्रेंचाइजी को एग्रीमेंट थमा दिया। कल्याण स्टेशन के बाहर एक टाइपिस्ट से हमने एग्रीमेंट टाइप कर दिया। बहुत से सिंधी ब्रदर्स बोले थे इसमें बहुत कंप्यूटर एजुकेशन लिखा, मैं बोला उसको भूल जाओ, यू नो। एंड हमने वड़ा पाव का एक एवरीबॉडी कैन हैव ए क्लैप। थैंक यू संजय फॉर क्लैपिंग। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very very important। and yeah, so now the most important thing is mind to market करते समय एक बार अपने निश्चय कर दिया है, उसके बाद 10 बार सोचना नहीं है। एक्शन करते समय दाएं मत देखो, बाएं मत देखो। माइंड में आइडिया आ गया, सोचते समय बहुत सोचो, घर में सोचो, बाथरूम में सोचो, बोर्डरूम में सोचो, बट जिस दिन मार्केट में गया तो एक्शन।
सब उल्लासनगर के हमारे जितने लोग थे उनको हमने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट दे दिया और 4-5 महीने में हमारे पास 15-20 दुकान फ्रेंचाइजी चालू भी हो गया। तो क्या अभी जैसे फ्रेंचाइजी चालू हो गया, हमारे पास एक 100 स्क्वायर फीट का किचन था, 15 दुकान आए तो 3000 स्क्वायर फीट का किचन डाल दिया, 5 बच्चे लोग को 25 बच्चे लोग कर दिया और एक प्रोसेस लगा दिया। एक इंटरनेशनल शेफ को हमने वो किचन में डाल दिया, वो क्लीनलीनेस और हाइजीन कर सकता है बिकॉज वो शेफ ये मैनेज कर सकता था। और टेस्ट स्कोर करने वाले तो 15-20 बच्चे लोग थे और रोड में या कॉलेज में कैंटीन में बनाने वाले बच्चे लोग थे। टेस्ट एकदम बेस्ट टेस्ट, बट हाइजीन क्लीनलीनेस और स्टैंडर्डाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे। और ये 15 दुकान में माल ने जाने लगा, गोली का नाम बन गया। अभी आता है वी कॉल इट व्हाट आई डिड इज कॉल इट अ पायलट। माइंड टू मार्केट जाते समय हम पहला करते हैं पायलट, एक किचन और 15 दुकान, और इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड बहुत सा चैलेंजेस आता है। अभी आता है माइंड टू मार्केट का चैलेंजेस। मेरे पास 200-300 चैलेंजेस आया रहेगा, पॉलिटिकल चैलेंज, म्यूनसिपालिटी चैलेंज, लेबर चैलेंज, सब चैलेंज में से एज एंटरप्रेन्योर अगर हमको बड़ा ब्रांड बनाना है, बड़ा कंपनी बनाना है, व्हाट इज दैट वी हैव टू सॉल्व। तो मुझे लगा वेस्टेज सॉल्व करना है, पिलफरेज करना है और स्टैंडर्डाइजेशन, बहुत सा चैलेंज में से। क्यों? सवेरे माल बनाओ शाम तक खराब हो गया, वेस्टेज, पिलफरेज, एक गोली का 2 गोली बन जाता था हर फ्रेंचाइजी के दुकान में। अगर हमने 500 गोली भेजा है तो छोटा छोटा उस गोली में से नया गोली बना देते। स्टैंडर्डाइजेशन, कुक और शेफ भाग गया तो टेस्ट चेंज हो गया। तो हमने सोचा वेस्टेज, पिलफरेज और स्टैंडर्डाइजेशन को अपन अटैक करेंगे। आई वेंट टू IIT, आई वेंट टू VJTI, आई वेंट टू वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूशन और काफ़ी रिसर्च में पैसा खर्चा करने लगा और बैंक से भी कर्जा लेने लगा। मेरा बैंकर बोलने लगा, वेंकी सब कुछ अच्छा दिखता है वड़ा पाव, बट ये तू रिसर्च कर रहा है और ये वेस्टेज, पिलफरेज, स्टैंडर्डाइजेशन, वड़ा पाव विल बिकम ए बर्गर। हाँ, वड़ा पाव विल बिकम ए बर्गर, ये तुझे तेरा काम है, बट मुझे लगता है तू बेगर जरूर हो जाएगा। एंड उस चक्कर में काफ़ी लोग मुझे डराने लगे। उस वक्त बैंकर ने बोला, मैं तुझे 10 दिन का टाइम देता हूँ, ये तो लोन लिया 50 लाख 1 करोड़, आई डोंट थिंक बिकॉज ऑफ वेस्टेज, पिलफरेज एंड स्टैंडर्डाइजेशन। I said, give me some time, I'll find some technology. And I would have gone to 1,000 people with technology, give me some time. And last 6 months में I would have gone to various people. And banker ने बोला, अभी एक ही हफ्ता देता हूँ. That's when I came back to NRI complex where I used to stay and I went for swimming. And उस दिन rain हो रहा था. I saw a middle aged सरदार जी under an umbrella. एक 100 जन के पास मैंने टेक्नोलॉजी के लिए गया रहा। तो as usual I went and spoke to him in a towel in the raining and said, this is what I do and this is what I'm facing challenge. And गलती से उसने बोल दिया maybe I can help you, और उन्होंने मुझे मोबाइल का नंबर दे दिया। अगला 15 दिन मैंने उसको डेली फोन किया and he came to my kitchen, he saw what I was doing, he shot a film about what I was doing, and then within a month he said, Venki, why don't you come to my factory? I got some good news. When I went there, he said we both can become partners. And I said, what is partnership? He said, we are the people who make burger patty for McDonald's worldwide. And मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा. I shot your film and I got a board resolution from Chicago McDonald's and OSI Corporation from USA. We can become partners. And with that partnership, which was making, can we have a clap? Yeah. And we partnered with the biggest American company which makes burger patty for McDonald's with a board resolution from McDonald's. And with that, Batata Vada, which was being done on the gutters of Mumbai, started being done on a fully automatic plant, with every vada going through a metal detector and X-ray machine. It was basically a 50 crore plant, and they are world's largest manufacturer for McDonald's worldwide. उनके साथ हमारा partnership हुआ, and with that, गोली का एक standardization हो गया, wastage का problem चला गया, pilferage का problem, standardization का problem चला गया, and we did a beautiful thing. And I think I went back to the banker. Banker बोला ये सब ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा? Because सपना अच्छा दिख रहा है, but तुम scale up कैसा करोगे? That's when I felt that एक अच्छा मेरे पास एक idea है और उसके साथ एक बड़ा partnership है American. With that I started going to investors. Investors were excited. A lot of investors didn't understand this. सब जन बोले कि अरे वड़ा पाव कैसा बर्गर हो सकता है ये वो सब. But जैसा ये technology और जैसा ये सब sharing किया, I was able to raise some 5 crores from a Citibank ka MD. You know, I didn't raise from some local politico. I didn't raise money from a builder. I raised from the Citibank ka managing director, ex-Citibank. जैसा ही ex-Citibank का managing director ने उसमें पैसा लगा दिया, suddenly वड़ा पाव को respect आ गया, और जो investor ने मुझे ना बोला था, पीछे मुड़ के मुझे देखने लगा, अरे यार इस बंदे ने पैसा लगाया, वड़ा पाव should be an interesting story. And suddenly वड़ा पाव का इज्जत बढ़ गया in the financial world. Lot of other investors started talking to me. So very important that you have to validate
from a good. घडी घडी आयुष्य तुम्ही बंद करना की And that's when I did that. And suddenly the pressure came because this Citibank, Citibank क्या करता है, 30,000 करोड़ लगाता है, 40,000 करोड़ लगाता है, बड़े बड़े विजन होता है. तो इमीडिएटली उन्होंने मुझे 3 महीने का टाइम दिया और बोला 3 महीने में वेंकी 300 दुकान लगाने का है. एंड जो चाहिए 50 करोड़ हम लोग रेस कर देंगे, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है. और मैं कल्याण का भाड़ा 15,000, ताना का भाड़ा 25,000, घाटकोपर का भाड़ा 30,000, दादर का भाड़ा 1 लाख, चर्चगेट का भाड़ा 2 लाख. And suddenly the real estate economics for Kalyan, what was working was not working for Dadar and Andheri. And suddenly I was stuck. What do I am saying? Entrepreneurs always will face a challenge. जितना बड़ा सपना उतना बड़ा challenge रहेगा. अगर दिल में जिगर नहीं है तो डर जाएगा. The other word for entrepreneurship is risk. Other word for entrepreneurship is challenge. Are you all with me? And then I said we will take it as a challenge. And उन्होंने भी मुझे 15-20 दिन टाइम दिया, बोला दादर में दुकान लगाया, वाशी में दुकान लगाया, बट 1-1.5 लाख का भाड़े में ये इकोनॉमिक्स बैठ नहीं रहा था. एंड उस दिन बिग बाजार बढ़ रहा था, रिलायंस रिटेल बढ़ रहा था, सुभिक्षा बढ़ रहा था, आईसीआईसीआई का एटीएम बढ़ रहा था, सब बढ़ रहे थे और वड़ा पाव के लिए जगह नहीं थी. एंड दैट्स व्हेन व्हाट हैपेंड. सडनली आई सेड आई एम नॉट गेटिंग रियल एस्टेट. तो इन्वेस्टर थोड़ा सा पैनिक हो गया. उन्होंने बोला अगर तुम स्केल अप नहीं कर सकते हो तो मेरा पैसा लौटा दो. As usual, I said, give me 1 week's time. I think entrepreneurs should always tell whenever there is a challenge, एक हफ्ते में solve करेंगे. And I gave up operation और पूरा बम्बई का चक्कर मारा सवेरे शाम. And I saw the RA milk booth on the footpath of Mumbai. एक 1800 बूथ थे पेडर रोड वाल्केश्वर में. आपने RA के मिल्क बूथ देखे मुंबई में? काफी है, छोटे छोटे से 50 स्क्वायर फीट के कियोस्क है. पेडर रोड, वाल्केश्वर, नरीमन पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया, प्रतीक्षा, अमिताभ बच्चन के बंगले के बाद, शाहरुख खान के बंगले के बाद ये RA के मिल्क बूथ थे. स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग था. मैं रात भर घुमा गिना, सवेरे 7 बजे जैसे उनका दुकान खुला, आई गॉट आउट ऑफ माई कार और रिक्शा. उस दिन मैंने टैक्सी लेके घूम रहा था पूरा बॉम्बे, रात भर घुमा और गिना. तो उनको जाके पूछा आप क्या करते हो? वो लोग बोले सकाळी 2 तास दूध विकतो, काय करत नहीं. आजकल मिल्क किधर दिन भर बिकता है, महानंदा भी आ गया है, बहुत आ गया है, हमारा दूध किधर बिकता है. मैंने उनको पूछा वड़ा पाव बेचोगे? बोलते कैसा वड़ा पाव? मैंने हमारा पैकेट थमा दिया उनको, किसी को बुला लिया था और बोला ऐसा ये आप वड़ा पाव बेच सकते हो. करीबन एक 40-50 जन ने बोले तुम्ही घेऊन या, आम्ही धंधा करतो. हमने जुगाड़ लगाया, नेटवर्क लगाया और 350 RA बूथ को गोली वड़ा पाव में कन्वर्ट कर दिया और उसके ऊपर गोली का बैनर लगा दिया, रेड एंड व्हाइट पेंट लगा दिया, वड़ा पाव का फोटो लगा दिया और रातों रात पूरा बंबई में 350 दुकान. चैलेंज आता है प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम, चैलेंज. प्रॉब्लम्स के देखेगा तो एंटरप्रेन्योर्स एकदम खुश होना चाहिए. द अदर वर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है. बाकी हमारे पास बहुत मैनेजर्स रहेंगे, सब सॉल्व करेंगे. बट द अदर वर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप सब कुछ बंद हो जाता है दरवाजा. तो एंटरप्रेन्योर क्या बनता है? बैट लेके धोनी जैसा उतरता है. जब सब दरवाजा बंद हो जाता है तो क्या लगता है? 4 ओवर 1 नंबर या 1 ओवर और 50 रन. वो जो सिचुएशन आता है तभी एंटरप्रेन्योर बैट लेके उतरता है. उसको बोलता है धोनी, उसको बोलता है तेंदुलकर, उसको बोलता है क्या बोलते हैं विराट कोहली. तो क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योर सब दरवाजा बंद हो गया तो खुश हो जाता है, आज मुझे बैटिंग का मौका मिलेगा. एंड RA के बूथ खुल गए एंड सडनली क्या हो गया? 350 बूथ लग गए. माय इन्वेस्टर वाज हैप्पी. पूरा बॉम्बे में लग गया, पेडर रोड, वाल्केश्वर, सब बड़े से बड़े इन्वेस्टर. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उस दिन चेयरमैन था उस जमाने में, पुरवार जी करके थे. आई हैड सम कनेक्शन एंड ही यूज्ड टू स्टे इन वर्ली सी फेस में एक 80 फुट का बैनर. इमेजिन पूरा बंबई में 40 क्या बोलता है एक बैनर लग गया RA के बूथ में 10-10 फीट का. एंड वो डबल ट्रिपल RA थे, उसमें तो ऐसे बड़े बड़े बैनर लग जाते थे 20 फुट के. पूरा बंबई में ब्रांडिंग हो गया और पूरा बंबई रातों रात समझ गया गोली वड़ा पाव क्या है. हाँ, और उसके अंदर एक फ्रिज डाल दिया, उसके अंदर एक फ्रायर डाल दिया. और फ्रिज क्या था? ब्लू स्टार का छोटा फ्रिज, सब फ्रोजन प्रोडक्ट को अंदर डाल दिया. हाँ, इतना सा. बोलते हैं बॉम्बे, इंडिया में नहीं बोलता है. ब्लू स्टार का चेयरमैन को जाके मिला, एक चाइना में फ्रिज मिलता है, बोलता है 100 फीट जो RA के अंदर जा सकता है. पूरा चाइना से इंपोर्ट कर दिया. ब्लू स्टार का टप्पा लग गया और उसने इंपोर्ट करके 300 बूथ में वो छोटा सा फ्रिज डाल दिया. और उसके बाद फ्रायर था, हमारा गैस बेस्ड फ्रायर था और गैस बेस्ड फ्रायर RA के अंदर नहीं जा सकता था.
क्योंकि फ्राइंग इज नॉट अलाउड, फ्लेम इज नॉट अलाउड ऑन फुटपाथ, वो बीएमसी का रूल था। तो फिर से सब जन आ गए, अरे यार ये फ्रायर से काम कैसा होएगा। तो हमने सोचा गीजर का भी रॉड होता है, तो बोलता है गीजर क्या होता है, तो हमने पूछा हीटर चलेगा क्या, वो बोला माइक्रोवेव हीटर है, हीटर चल जाएगा, फ्लेम नहीं दिखना चाहिए। एक कोई तो भी जो गीजर का हीटर बनाता है ना, उसको पकड़ा और उसने एक हीटर का रॉड दिया, हमने इलेक्ट्रिकल फ्रायर बनाया और एक छोटा सा डब्बा डाला, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल का जो है ना गीजर का रॉड डाल दिया, और एक आईआईटी का जो बंदा था उसने इंस्ट्रूमेंटेशन डाल दिया, और एक 15 से 20 हजार में हमारा जुगाड़ू फ्रायर बन गया। गीजर का रॉड, स्टेनलेस स्टील का डब्बा 5 लीटर का, और उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को डाला। 170 में फ्लेम चालू होता है, 180 में फ्लेम खत्म हो जाता है, वड़ा डाल दो, 5 मिनट में तैयार हो गया। तो एंटरप्रेन्योर कभी ना नहीं बोलता है, हर चैलेंज को स्वीकार करता है। टेक्नोलॉजी, तुम 10वीं पास रहेगा, बीकॉम रहेगा, आईआईटी इंजीनियर रहेगा, वो मालूम नहीं है। सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने रातों रात इंस्ट्रूमेंटेशन का बुक लिया, पढ़ा, एक आईआईटी इंजीनियर दोस्त था, उससे बात किया, बोलते हैं वेंकी एकदम पॉसिबल है, गीजर का रॉड डाल दे, इंस्ट्रूमेंटेशन डाल दो, और वो क्या बोलता है उसका ना सॉल्वेंट उसके अंदर डाल दो। अगर फ्लेम में 170 फ्लेम में गर्म हो जाता है तेल, 180 फ्लेम में स्मोक हो जाता है, तो स्मोक नहीं चाहिए हमको। 170 और इसका बीच में कैलिब्रेट कर दिया और कर दिया। मेरा पिताजी बोला ये सब पढ़ाई उस जमाने में करता तो इंजीनियर तो हो जाता था। सो एज एंटरप्रेन्योर्स हमारे लिए लिमिटेशन कभी नहीं होता है, कभी लिमिटेशन नहीं होता है। हर चैलेंज को स्वीकार करो। इंजीनियरिंग मालूम नहीं तो इंजीनियर को पकड़ो, उसको चाय पिलाओ, वड़ा पाव कर दो और अपना एक रॉड बना दो। यू नो दैट्स हाउ एंटरप्रेन्योर्स आर। और वो हमने 350 बूथ में वो डाल दिया और हमारा घोली वड़ा पाव रॉकन हो गया। फिर म्यूनसिपालिटी से परमिशन लिया, इंडिया का लीडिंग क्रिकेटर को पकड़ा जिसको वड़ा पाव पसंद है, यू ऑल नो सचिन तेंदुलकर, जुगाड़ लगाया, उसको दोस्ती बनाया और उसके उन्होंने बोला चलो मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। और उस जमाने में हमने म्यूनसिपालिटी से परमिशन लेके एक पूरा 1.5 लाख का बलून बनाया और लावनी फेस्टिवल तैयार किया। एंड उस वक्त वी वेंट टू म्यूनसिपालिटी, बीएमसी, एंड एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। 2 ब्रदर्स वर स्प्लिटिंग, क्या बोलते हैं, 2 ब्रदर्स वर स्प्लिटिंग इन मुंबई। यू ऑल नो पॉलिटिकल सिचुएशन था 2008-9 एंड 2 भाई स्प्लिट हो रहे थे पॉलिटिकल पार्टी से। एंड एक भाई के पास कुछ तो एजेंडा था, दूसरे भाई के पास एजेंडा नहीं था। एंड वड़ा पाव बिकेम ए पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू 2008 में। एंड आई वाज अ मद्रासी सेलिंग वड़ा पाव इन मुंबई। तो सडनली इट बिकेम ए बिग चैलेंजिंग सिचुएशन। एंड हमने 350 बूथ ऑल ओवर मुंबई लगा दिया था, एंड बूथ चालू भी हो गए थे वड़ा पाव बेचने के लिए। एंड विद इन 6 months it became very big because it was a political year. My investors panicked. Back end में मेरा American supply chain company panicked. What to do? And before I could see it, it became a big. हमारे आरे में यूनियन फॉर्म हो गया, हमारे गोली वड़ा पाव जितने तो ब्रिक एंड मोटर स्टोर उसमें एक दुकान को जलाया गया। एंड मुझे कॉल्स आने लगे एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। एंड बिफोर वी कुड डू, आई हैड नो ऑप्शन बट टू क्लोज डाउन द आरे बूथ। ब्यूटीफुल, 9 महीने में हमको आरे बूथ बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन। डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, ओके, डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। एंड माय इन्वेस्टर्स पैनिक, एवरीबॉडी पैनिक। सब जन को लगा अभी क्या करेंगे। मैं बोला ठीक है, पूरा बॉम्बे में तो सब जन गोली वड़ा पाव जानने लगे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हमसे फेडरल रोड से सब बात करने लगे। तो हमने बोला नया पैसा रेज करेंगे और आगे जाएंगे। आई हैड अ बैकिंग ऑफ ए बिग सिटी बैंक गाय, यू नो माय बेस्ट बॉस वाज आल्सो सिटी बैंक गाय। हमने बोला सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग रेज करेंगे, इससे मार्केटिंग हो गया है बट शायद आरए से विड्रॉ करना पड़ेगा। एंड सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग के लिए हम लोग बात करने लगे, लोग बात कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली 2008-9 में वही 1-2 महीने में लेमन ब्रदर्स हुआ। आपने सुना लेमन ब्रदर्स का स्कैम? लेमन ब्रदर्स सुना है सबने? सबसे बड़ा स्कैम 2008 का। एंड ऑल द मार्केट क्रैश्ड, ऑल द इन्वेस्टर्स पैनिक्ड। एंड फर्स्ट वाज अ पॉलिटिकल चैलेंज। जब इन्वेस्टर ने लेटर दे दिया था, एक 40 करोड़ का 50 करोड़ का लेटर मिल गया था हमको फॉर एक्सपेंशन। एंड तभी क्या हो गया, लेमन ब्रदर्स हो गया एंड द मार्केट टैंक। एंड एवरीबडी सेड व्हाट कैन यू डू वेंकी, वी डिडंट हैव मनी, वी डिडंट हैव मार्केट एंड वी डिडंट हैव स्टोर्स। एंड एवरीबडी सेड गोली इज क्लोज्ड, कंपनी को बेच दो। आई वाज सिटिंग इन द लॉयर्स ऑफिस, दैट्स व्हेन आई टोल्ड आई डोंट वांट टू सेल द कंपनी, गिव मी सम टाइम, आई विल डू समथिंग। इन्वेस्टर से झगड़ा करके मैंने 28% ब्याज में 2.5 करोड़ उठाया, 28% ब्याज में 2.5 करोड़ उठाया और बोला मैं कंटिन्यू करूंगा। सब जन बोला लेमन ब्रदर्स हो गया है, बॉम्बे का मार्केट तेरा खत्म हो गया है, इधर तेरे को पॉलिटिकल इशू है। 350 केस हमारे ऊपर फाइल हो गए थे उस जमाने में बिकॉज ऑफ आरए, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन। हर दिन में कोर्ट जा रहा था, बट एक फेथ रहता है। क्या रहता है?
एक फेथ रहता है। और उस वक्त क्या हुआ, हम कंटिन्यू करते रहे वो ब्याज में पैसा लेके, एंड सब दुकान बंद, बट विथ वन फेथ। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, उस वक्त नासिक से एक एंटरप्रेन्योर आया हमारे ऑफिस में। ये सब पॉलिटिकल सिचुएशन, हम लोग सैलरी नहीं दे पा रहे थे, पैसा नहीं था, और बोला मुझे गोली का फ्रेंचाइजी नासिक के लिए चाहिए। तो हम लोग सब टेंस थे, हम लोग बोल रहे थे क्या करेंगे, हमारा तो बैंड बजा है। तो उसने बोला तुम्हारे हाथ में जो है ना ये वड़ा पाव, इसमें सोना है, बोलता है ऐसा वड़ा पाव अगर किसी ने नासिक में खाया तो मजा आ जाएगा। तो मैं बोला करते हैं, रिलक्टेंटली बोला करते हैं, पर हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम आके माल लेके जाओगे। बोलता प्रोडक्ट दे दो, हम माल लेके जाएंगे। तो कॉलेज रोड में, बट हमने बोला बेस्ट लोकेशन में खुलना चाहिए। तो उसने बोला बेस्ट लोकेशन कॉलेज रोड होता है। एंड कॉलेज रोड में हमारा नासिक 2008 जब बॉम्बे जल रहा था और हमारे दुकान बंद रहे थे, नासिक में एक दुकान खुला और हम लोग देख रहे थे क्या होगा नासिक में जाके। नासिक में एक दुकान खुला एंड नासिक में आग लग गया। विद इन 3 मंथ्स नासिक में 10 दुकान खुल गया। क्या बात है। वड़ा पाव खाया नासिक में, किसने तो भी वड़ा पाव खाया। औरंगाबाद में एक दुकान खुला, 4 दुकान खुले, औरंगाबाद में 4 दुकान खुला, औरंगाबाद में 10 दुकान हो गया। औरंगाबाद में खाते खाते सडनली नासिक और औरंगाबाद को देखे जलगांव खुल गया, परभनी खुल गया, लातूर खुल गया, अब बोलो पिंपलगांव खुल गया, सब छोटे छोटे गांव में। और छोटे बिना भी 75 स्टोर्स इन इंटीरियर महाराष्ट्र। हमको मालूम भी नहीं है, डेली टोपी पहन के जीप लेके कोई आता था और बोलते आम्हाला वडापावची फ्रँचायझी पाहिजे। कुठे जलगाव, कुठे पिंपलगाव, कुठे ओझर, किधर क्या बोलते हैं। देखते देखते खुल गया। हमने उनको सबको अग्रीमेंट कमाया। अग्रीमेंट हमारा किसने, प्यून ने उनके हाथ में दिया, बिकॉज कंपनी में तो कोई ताई नहीं है। एंड सब जन से 1-1 लाख फीस लिया एंड देखते देखते 75 दुकान खुल गया। हमको बॉम्बे में कोर्ट ने बुलाया बिकॉज हमारे ऊपर वाइंडिंग अप पिटीशन क्या लग गया था केस, कंपनी का वाइंडिंग अप पिटीशन, क्या बोलते हैं उसको, क्लोजर। तो हमारे पास एक नोटिस है, हम जज के सामने बोला और सब नासिक, औरंगाबाद, जलगांव, पिंपलगांव का फोटो लिया और हम बोला इतने दुकान खुल गए, क्या को बंद करना है। बोलता कंपनी चालू है। बोलता है 75 बॉम्बे का आरे बूथ बंद हो गया, पर इंटीरियर महाराष्ट्र में 100 दुकान लग गया है। जज ने वो वाइंडिंग अप पिटीशन का केस को फाइल किया और हमको बोला चालू करो तुम्हारा काम करके। एंड दैट्स हाउ गोली ग्रू। एंड नासिक, औरंगाबाद, इसको देखते देखते कर्नाटका से कोई आया जिसने औरंगाबाद में वड़ा पाव खाया, वहां से नासिक में, उसने शिरडी में पहला खाया, फिर औरंगाबाद में खाया, फिर इधर खाया। वो नेस्ले का डिस्ट्रीब्यूटर था, वो हमारे पास आया, हमको बैंगलोर में दुकान लगाना है। मतलब बैंगलोर में कैसा, कोई मद्रासी लोग वड़ा पाव खाता है क्या। तो हमने बोला, उसने बोला तुम क्या बोल रहे हो। तो मैं खाया, मैं खुश हो गया, इतना बढ़िया मजा आ गया। मैंने अभी मेरे दोस्तों को भी बोला, तो बोला तुम कितना दुकान खोल सकते हो। तो बोला मैं 1 दुकान खोलता हूँ। बोला 1 दुकान के लिए थोड़ी बैंगलोर आएंगे। तो उसने बोला बैंगलोर में मैं 10 दुकान, बोला बैंगलोर में कम से कम 25 तो खोल सकता है। बोला मैं नेस्ले का डिस्ट्रीब्यूटर है लास्ट 25 साल से, किधर भी मैं बैंगलोर में दुकान खोल सकता हूँ, आप मुझे मास्टर फ्रेंचाइजी बनाओगे क्या। तो नासिक वाला ने 25 लाख दिया, औरंगाबाद वाला ने हमको 50 लाख दिया, नागपुर वाला ने 50 लाख दिया। जो भी हमको बोलता था मैं दुकान लगा सकता है, उसको बोलता था तुम अगर दुकान लगा सकते हो 25 तो 25 लाख दे दो, हमको गारंटी चाहिए। तुम बोल के जाओगे और मैं तुम्हारे लिए उधर लॉजिस्टिक लगाएगा, बेकरी लगाएगा, क्या हो जाएगा। तो बैंगलोर वाले, तो देखते देखते हमारे पास एक नया कंसेप्ट हो गया। जो हम क्या आके बोलता था 25 दुकान लगाएगा, हम बोला 25 लाख। कोई बोलता था हम 50 दुकान लगाओ, बोलो 50 लाख दुकान दो और मास्टर फ्रेंचाइजी बनाओ। तो मैं फ्रेंचाइजी भी डेवलप्ड, मास्टर फ्रेंचाइजी कंसेप्ट हमको जो समझा हमने किया है। और उस वक्त बैंगलोर में 1 दुकान खुला अगेन ज्योति नगर, और बैंगलोर में 70 दुकान खुल गया 9 मंथ्स टाइम। एंड दैट्स द पावर ऑफ द ब्रांड। एंड सब जन वहां से चेन्नई गया, कोयम्बतूर गया, यूपी में 70 दुकान लगाया, एमपी में दुकान लगाया, दिल्ली में खुल गया, पंजाब में। एंड देखते देखते 300 दुकान 100 cities and 20 states में खुल गया, and Goli became national. So what do you want to call this? We can have a big round of applause of this section. So what do you have to tell? You have a dream. The dream has come in the womb of the universe. It is the responsibility of the dream universe to fulfill the dream. It is the responsibility of the universe to fulfill the dream. इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। क्या बोलते हैं, एक आइडिया आया और उसका एक्सप्लोरेशन कर दिया, और एंड पैन इंडिया दुकान खुल गया। एंड ये करते करते आई वुड टेल यू ब्यूटीफुल इंसिडेंट। 2008-9 सब ये सब प्रॉब्लम हो रहा था। नासिक में कुछ 7-8 दुकान खुल गया था, तो टाई करके एक इवेंट हुआ, टाई करके एक बड़ा एंटरप्रेन्योरियल इवेंट हुआ।
एंड ऑल ओवर इन वर्ल्ड से एंटरप्रेन्योर उधर आने वाले थे एंड एक बड़ा 5000 एंटरप्रेन्योर का सम्मेलन था एंड ऑल ओवर वर्ल्ड VCP भी आने वाले थे। किसी ने तो भी बुलाया हमको कि वड़ा पाव का स्टॉल लगाओ, तो एक इंट्यूशन था, मैं स्टॉल के साथ चला गया और बोला कि उन्होंने बोला भैया वड़ा पाव के साथ हमको समोसा भजिया और चाय चाहिए, वो टाई इवेंट का जो ईडी था। तो हमने बोला नहीं, हम वड़ा पाव के साथ सिर्फ वड़ा पाव ही दे सकते हैं, चाय समोसा भजिया, या व्हाई यू वांट टू डू इट। तो मैंने बोला नहीं, और 2 मिनट में हमारा स्टोरी बोला, उनको स्टोरी बहुत पसंद आया एंड उन्होंने बोला तुम्हें 2 मिनट हमने जो स्टोरी बताया 3 मिनट, वो 30 मिनट बात कर सकते हो। मैं बोला हम बात करेंगे। बोला क्या करना है? बोलते ये बड़ा एंटरप्रेन्योरियल समिट है, तुम स्टॉल तो लगाओ, स्टॉल के साथ तुम स्पीकर बन जाओ। एंड उस दिन 2008 में जब हमारा पूरा बैंड बज गया था 9 में, आई बिकेम ए स्पीकर। जीन्स चप्पल और टी शर्ट पहन के मैं वो स्टॉल लगाने चला गया और उन्होंने मुझे स्पीकर बना दिया। एंड मैं स्टॉल में देखता हूँ वो डायरी में किस किस का नाम है जो स्पीकर थे। एक रतन टाटा था, एक नारायण मूर्ति था, एक चंदा कोचर था, एक केवी कामत था, एक आनंद महिंद्रा था, और उसके बीच में आई ऑल्सो एंडेड अप बिकमिंग ए स्पीकर। एंड उस दिन फर्स्ट सेशन था एंड फर्स्ट सेशन में रतन टाटा और नारायण मूर्ति स्टेज पे थे और शेखर गुप्ता उनको सवाल कर रहे थे। तो किसी ने तो भी पूछा और तभी हमारे ऊपर वाइंडिंग अप पिटीशन लगाया था। और नासिक में 8-10 दुकान खुल गया था, औरंगाबाद में। तो मैं बोला ये तो सबसे अच्छा मौका है, NDTV है, स्टार TV है, लोग किधर खड़े। मैं बोला एक सवाल पूछना चाहिए, तो सब बॉम्बे में समझ रहे थे हमारा धंधा बंद हो गया है और वी वर हंग्री फॉर इन्वेस्टर, बिकॉज दुकान तो खोल दिया बट हमारे जेब में पैसा नहीं था ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ये। तो उन्होंने क्या बोला, शेखर गुप्ता ने एक लास्ट क्वेश्चन, तो मैंने हाथ उठाया एंड लकीली आई वाज सिटिंग इन द फर्स्ट रो एंड हाथ उठाया तो उन्होंने मुझे बोला यू आस्क द क्वेश्चन, और मैंने उनको सवाल पूछा रतन टाटा को, यू हैड टू लीव वेस्ट बंगाल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन, I had to leave Mumbai because of political situation. My investor is saying, Mr. Tata couldn't handle the politics of India. तुम तो छोटे से आदमी हो, धंधा बंद करके चले जाओ और कंपनी को वाइंड अप कर दो। तो ये सवाल मैंने पूछा और टाटा had tears in his eyes. And उन्होंने बोला, I wanted to do something good for West Bengal, but I couldn't. And that's when that tear and that answer connected with the audience behind. पीछे 5000 एंटरप्रेन्योर ऑल ओवर वर्ल्ड थे और उसमें से 1000 VCP थे जो इन्वेस्टर सिलिकॉन वैली, सिंगापुर, अमेरिका, कहाँ से आए थे। एंड जैसे ये सवाल किया और जवाब किया, क्या हो गया, इट कनेक्टेड विद द ऑडियंस एंड NDTV ने ये सवाल जवाब को कंटिन्यूसली नेक्स्ट 3 दिन न्यूज में बताया। एंड उसके बाद क्या हुआ, आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग। उस ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर में से एक जन ने आके मेरा शोल्डर टैप किया और वड़ा पाव खिलाओ बोला। वड़ा पाव खाते खाते बोला, आई एम ए VC, हाँ, एंड आई लाइक योर स्टोरी, कैन आई इन्वेस्ट इन योर कंपनी। He invested 21 crores in my company. What do you call it? What do you call it? Luck is meeting point of opportunities passing by, your alertness to grab it. What is luck? Luck is meeting point of opportunities passing by. अगर उस दिन मैं सवाल नहीं करता था तो मैं शायद इन्वेस्टर से कनेक्ट नहीं करता था और शायद 1 साल के बाद उसने मुझे 21 crores दिया, मुझे मिलता नहीं था। This is very, very important, and very important talent for entrepreneurs is critical thinking, imagination and communication. Critical thinking, 2 मिनट में critically सोचो रतन टाटा और तुम्हारे बीच में क्या कॉमन कनेक्शन है। उसको पॉलिटिक्स ने मारा, मुझे भी पॉलिटिक्स ने मारा, चल पहला कनेक्शन। सेकंड क्या, उसको वेस्ट बंगाल छोड़ना पड़ा, मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा। एंड द थर्ड इज, अगर ये इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट हो गया तो कुछ तो होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, कुछ इमेजिनेशन एंड कम्युनिकेशन। आई थिंक दिस ट्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स हु कैन थिंक बिग, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हारा आइडिया को अगर तुमको इन्वेस्टर को बताना है, तुम्हारा फ्रेंचाइजी को बताना है, तुम्हारे एम्प्लॉय को बताना है, ये टैलेंट चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड कम्युनिकेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो इसके बाद मुझे कुछ करने नहीं पड़ा, 21 crores आ गया एंड मैं सडनली, जो आदमी एकदम रेटिसेंट था, शाई था, नॉर्मली मुझे घर में भी बात करने के लिए, आई हैव वेरी पावरफुल वाइफ इन माय हाउस, एंड घर पे भी बात करने के लिए मुझे उंगली उठाना पड़ता है, नो, आई एम ए वेरी रेटिसेंट पर्सन। उस दिन हमने वो जो आधा घंटा भाषण दिया, उसके बाद IIT, IIM, VJTI, टाई, सब जगह से लोग मुझे बुलाने लगे फॉर टॉक्स, एंड बिफोर आई कुड सी, आई डिड 300 टॉक्स अक्रॉस इंडिया एंड आई एंडेड अप गेटिंग 350 फ्रेंचाइजीज अक्रॉस इंडिया। जितना कम्युनिकेट किया, उतना मीडिया ने कवर किया, उतना ज्यादा फ्रेंचाइजीज आ गया। तो जेब में कुछ भी नहीं होता है तो क्या करना होता है, महात्मा गांधी को इंडिया के लिए फ्रीडम देना था, बट उसके पास कुछ नहीं था, एक आइडिया था,
वो ऑल ओवर इंडिया जाके धोती में भाषण दिया, सब उसका आइडिया कम्युनिकेट हो गया एंड एक फ्रीडम स्ट्रगल चालू हो गया। हिटलर को कुछ करना था, हिटलर ने सिर्फ माइक लेके पूरा जर्मनी में भाषण दिया सडनली। सो आई थिंक वी हैव टू यूज our communication skill to the fullest, and what Sanjay is encouraging through NEF, what he was doing was, that's why I like entrepreneurs or people who encourage entrepreneurs to talk. Communication is very very important for entrepreneurs. And उसके बाद ISB ने एक केस स्टडी किया, हार्वर्ड ने एक केस स्टडी किया, IMD स्विट्जरलैंड ने केस स्टडी, मैं जाके हार्वर्ड में भाषण देने लगा, मैं IMD स्विट्जरलैंड में भाषण देने लगा, ISB में, IIT में, IIM में, and with that the brand became, CNBC came and and I think that's how Goli became national. Goli became. I had many more challenges. That's a different story. That is for my journey with Vada Pav. Second story, you know. By 2015, we all became big. And even in COVID, right now, when every store was closed, we got excited and we opened 100 stores in COVID. घर में बैठे बैठे. And you know, 100 stores खुल गया. एक 50 लाख franchisee fee हो गया. And Goli COVID में, my investor presently बोलते हैं सब बंद है, कैसे खोल दिया? But through the spirit of entrepreneurship, we were able to do it. तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 500 kg से हम मैक्स। I think somebody is, yeah, okay, good. So, Sorry. This is what I wanted to tell, and with that I will leave Sanjeev for the question and answer session, and we can end my session with a big round of applause. Big round. Venki, I think very inspirational, excellent session. I think mind blowing, and thanks to you for speaking multiple languages. आपने हिंदी में बात की, आपने मराठी में बात की और आपने इंग्लिश में भी बात की और आपके स्टाइल में की। तो आपने शुरुआत की थी इंस्पिरेशन से, देन आइडिया, फिर आइडिया को आपने हार्ड वर्क से रियलिटी में कन्वर्ट किया। आपके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, फेलियर्स आए, बट यू एज एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ही होती है कि तुम जितने जोर से गिरो उतने जोर से उठना और फिर हिम्मत से और आगे काम करना। तो बहुत अच्छा आपके लर्निंग लेसन्स थे अबाउट एवरीथिंग यू डन in terms of the value proposition, branding, validating, converting, finding the right opportunity. और खिसे में भले पैसा नहीं होगा दो, पर never giving up. आपका रतन टाटा का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी स्टोरी थी। आर्य की स्टोरी एक अमेजिंग स्टोरी थी आपके टर्निंग पॉइंट के लिए और बहुत अच्छा रहा। तो मैं अभी Q&A सेशन चालू करूंगा, उसके पहले मैं देखना चाहता हूँ हमारे गार्डियन सतीश जी पारक अगर ऑनलाइन होंगे तो उनको दो शब्द कहने थे गुड टू गुड के प्रोग्राम के बारे में। लेट मी सी इफ सतीश जी पारक इज देयर। सतीश जी पारक है क्या ऑनलाइन? नहीं सर, सतीश जी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए। अच्छा, चलो देखेंगे तब आएंगे। तो मैं बाकी ऑडियंस को चांस देना चाहूंगा क्वेश्चंस के लिए। हमारे एक अजय बेदमुत्ता का, उन्होंने मैंने देखा हैंड्स अप था, उनका क्वेश्चन होगा तो उनको देते चांस, उसके बाद में मैं अगला सवाल करूंगा। अजय बेदमुत्ता, डज यू हैव अ क्वेश्चन? No, right now, actually, I don't have a question, but I would like to tell Venki sir that it was an excellent session and very, very inspirational. And we could all link you, the smallest entrepreneur to the biggest entrepreneur. Everybody could link with the talks, and it was really very inspirational. Thank you so much. Thank you, Ajay. Thank you. Thank you, Ajay जी। और वेंकी से हमको ये भी सीखने को मिलता है कि भाई तुमको आइडिया कोई बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम वड़ा पाव भी बेच सकते हो, तुम वेयर हाउसिंग भी कर सकते हो। ऐसे आइडिया ये भी नहीं चाहिए कि तुमको सेमीकंडक्टर ही बनाना है या एप्पल फोन ही बनाना है। तुम सादी आइडिया से उस बिजनेस को अच्छी तरह से करो तो बहुत बड़ा बना सकते हो। तो वेंकी के लिए मेरा पहला सवाल रहेगा, वेंकी अभी कोविड मार्च में चालू हुआ इंडिया में, आज 8 महीने हो गए। बहुत लोगों ने दुकानें बंद कर दी, होटल, हॉस्पिटलिटी सब सारे धंधे बंद हो गए, एयरलाइन कम हो गया। एंड तुम्हारा तो स्टोर्स का काम है, अनलेस यू सेल द वड़ा पाव यू कैन नॉट सक्सीड, यू कैन नॉट क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट। तो ड्यूरिंग द कोविड टाइम एज अ लीडर एंड एज अ टीम तुमने इस क्राइसिस को कैसे हैंडल किया और तुम हमारे एंटरप्रेन्योर जो आए नासिक के, इनको क्या एडवाइस करोगे इस पीरियड के, तुमने जो लेसन सीखे? So thank you Sanjay for such a wonderful question. You have always been an inspiration, Sanjay has been. So what important thing is COVID हुआ and सब बंद हो गया, तो हमारे लिए भी शॉक था। We were on a fundraising in फंड रेजिंग करने वाले थे, सडनली कोविड हो गया
एंड अक्रॉस इंडिया दुकानें बंद हो गई। तो हमारा बिगेस्ट पावर था कैश फ्लो। 300 दुकान से डेली गले से कैश आता था, तो जैसे हम अच्छा चल रहे थे। तो सडनली विदाउट कैश फ्लो हाउ डू यू सर्वाइव? एंड हमारे पास स्टाफ है, एक 100 कंपनी ओन स्टोर्स है एंड फ्रेंचाइजी के स्टाफ है। हाउ डू यू हैंडल ऑल दिस? एंड सब दुकानों में माल पड़ा है, यू नो, अगर दुकान चालू नहीं हुआ तो माल खराब हो जाएगा। उसका लाइफ है 9 months, बट फिर भी एक लिमिट के बाद हम उसको ये नहीं करना चाहते कोविड कब तक चलेगा, क्या चलेगा, वो सब था। तो एट दिस जंक्चर I was not very sure what to do. Even I was perplexed. My wife Asha, she is a very powerful personality. She was going through cancer, you know, she had gone through cancer and she had gone through surgery and chemo, and she used to do a lot of meditation. And a lot of people used to call me up and say, Venki, कुछ वड़ा पाव दे सकते हो क्या? Because कोविड में वो क्या माइग्रेंट लेबर सब जा रहे थे और गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए था टू फीड द माइग्रेंट लेबर्स, गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए था टू फीड द पुलिस पीपल, गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए था टू फीड द म्युनिसिपल पीपल वो आर वर्किंग ना। तो काफी मुझे ईमेल आता था, पीएमओ ऑफिस से आया, लोकल आईएएस पीपल से आया, पुलिस कमिश्नर से आया, बट वी वर स्टक, यू नो, पैसा कम था, तो हाउ डू यू गिव इट फ्रीली? एंड माय बोर्ड वाज आल्सो सेइंग, अरे फुकट में कैसा वड़ा पाव दे सकते हो, नो, वी आर अ स्मॉल कंपनी। एंड दैट्स व्हेन माय वाइफ सेड, वेंकी वी कांट गिव अप, सो मेनी पीपल आर wants food and migrant labor को कुछ तो करना पड़ेगा। And she thought about an idea. She went on that WhatsApp group on her friend circle and family and said, we have started a project called Feed the Hungry. If you can donate money, उस पैसे का हम वड़ा पाव कन्वर्ट करेंगे और कॉस्ट टू कॉस्ट हम फिर इनको दे देंगे, हंगरी पीपल को दे देंगे, एनजीओस को। एंड व्हाट्सएप में जाते जाते मुझे भी मालूम नहीं था क्या कर रही थी। शी वॉज मेडिटेटिंग एंड शी वॉज डाउन विद कैंसर। तो व्हेन शी सेंट ऑन व्हाट्सएप, पहला 5,000 रुपया, फिर 10,000 हुआ, देख दिन 1 लाख आ गया, किसी ने 50,000 दिया, एंड देखते देखते हमने 50 लाख रुपया कलेक्ट कर लिया और 50 लाख रुपया वर्थ ऑफ वड़ा पाव डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो किसी को नासिक में किया, किसी को नागपुर में किया, किसी को यूपी में किया, किसी को बैंगलोर में किया, एंड इससे हमारा टीम बहुत एनर्जेटिक हो गया। ये तो एक चैरिटेबल एक्टिविटी था, हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही बेच रहे थे, पैसा काफी नहीं, उसमें पैसा नहीं बन रहा था, बट वो एक्टिविटी, एक चैरिटेबल एक्टिविटी में एनर्जी। यूपी में दुकान खोलो, सडनली क्या हो गया, बच्चों को फोन करो, नासिक का कोल्ड रूम खोलो, बेकरी को खोल दो, एक दुकान खोल दो कॉलेज रोड में, एक औरंगाबाद में दुकान खोल दो, एक नागपुर में खोल दो, एक यूपी में खोल दो। इसमें एनर्जी आ गया। टीम कॉन्ट ऑन जूम कॉल, वी यूज्ड टू डेली टॉक, इतना डोनेशन किया, इतना डोनेशन को बैंक में लिया, उसको वड़ा पाव में कन्वर्ट कर दिया। सडनली पीएमओ ऑफिस स्टार्टेड टॉकिंग टू अस। ऑल दिस माइग्रेंट ट्रेन जो जा रही थी, रेलवे हमसे बात करने लगी, रेलवे से अच्छा कनेक्शन बन गया, एंड वी स्टार्टेड सेलिंग वड़ा पाव टू दैट। तो इसने हमको एक एनर्जी दिया। उस एनर्जी देखते देखते अप्रैल और मई में हम यही काम किया। जून में हम दुकानें खुल गए थे, धीरे धीरे दुकानें खोल दी, और जुलाई में और दुकानें खोल दी। सितंबर करते करते हमने 100-125 दुकान खोल दिया। महीने को हमारा रन रेट पहले 30 लाख था, फिर 50 लाख था, फिर सब अभी 1.25 करोड़ तक पहुंच गया है। इसको देखते देखते काफी फ्रेंचाइजी आ गए, हमने 50 लाख फ्रेंचाइजी फी कलेक्ट कर लिया। एक 15 दुकान कोविड में खोल दिया, न्यू दुकान, एंड गोली मरा नहीं। So that's what I would say was a beautiful experience, thanks to Asha, my wife. वेंकी, सेकंड सवाल है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, तुम रिसेंटली कोविड के पहले यू मेट अमिताभ बच्चन ऑन केबीसी शो, तो एक तो मीटिंग कैसे हुई, और तुमने अमिताभ बच्चन जो हमारे इंडिया के अच्छे सुपरस्टार है, अच्छे व्यक्ति है, इनसे क्या सीखा आपने? So one was a beautiful thing, you know, in all my talks I always say vada pav is like Amitabh Bachchan, you know, that is a very powerful statement I used to make. And suddenly मुझे फोन आया somebody जो उनके करीब के थे, और उन्होंने बोला कि हम लोग का बात होते होते उनका फैमिली से बात हुआ है, एंड माई जर्नी विथ वड़ा पाव किसी ने तो भी पढ़ा था, वो जो है ना उनका क्या बोलते हैं, उनका जो केबीसी का करते हैं ना, द फेमस सिद्धार्थ बासु, तो सिद्धार्थ बासु ने पढ़ा, एंड उनके बीच में चर्चा हुआ। तो अमिताभ बच्चन वाज सपोज्ड टू बी इन सम प्लेस, एंड माय फ्रेंड कॉल्ड मी अप एंड सेड ही वुड लाइक टू मीट यू, एंड बिकॉज माय जर्नी विथ वड़ा पाव, एंड ही हैड रेड समथिंग। एंड उस जमाने में एक ट्वीट चला गया था, अभिषेक बच्चन फ्लॉप हो गया है तो उसको वड़ा पाव बेचने पड़ेगा करके, और उसको ट्रोल हो गया था। तो माय जर्नी विथ वड़ा पाव किसी ने तो भी वो फैमिली में दिया था, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। So he felt like that he should meet me. So that's when I went to South Bombay. I was supposed to go to South Bombay and meet, but उस दिन मेरा मोतीलाल ओसवाल में टॉक था, and Amitabh Bachchan was at 4:30. So I thought I missed the opportunity. तो रात को फोन आया, दूसरे दिन सवेरे वो केबीसी के सेट में उधर आ जाओ करके। तो तब जाके
मैं केबीसी के सेट में गया, उनको मुलाकात हुई. आई सॉ इस एनर्जी जो उस वक्त वो केबीसी का प्रोग्राम में 1 घंटे का शूटिंग हो रहा था उनका या 2 घंटे का. When I went there, my wife had reached in the morning and I went in the afternoon. The kind of energy is showing at that age of 65 plus, whatever his age is. What is would be his age? 70? 76. 76. Wow, what kind of energy I saw, what kind of commitment, what kind of dedication. उसको बीमारियां है, he can't eat this, he can't eat that, but वो जो देखा और वो सिद्धार्थ बासु और बाकी सब जन जो बोल रहे थे केबीसी वाला, the kind of discipline, the kind of energy he brings, and वो जब वो कैमरा के सामने आ जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, and एक अलग ही. So something which is that your commitment to your profession, his commitment to acting is so beautiful, and the way he reinvented himself with that. And when I went to meet him, he took the book, he looked at me, and he was reading the book, and he's saying, वड़ा पाव के ऊपर आपने किताब लिखा है, मैंने सुना है. He started going through the page and said, wonderful, I'm so inspired. And with this kind of, so एक आदमी इतना अचीव होने के बाद भी ह्यूमिलिटी दिखाता है. क्या दिखाता है? ह्यूमिलिटी दिखाता है. And then he spent some time with me in that KBC set to understand the story, what I did, how I did. So what I said, what he is a person who never gave up. After Bofors, after the political situation, he fell down. But he had the humility. He told me, I went to that person. Film director was very famous. And जो बोलते हैं ना, जिन्होंने उनके लिए एक पिक्चर बनाया. यश चोपड़ा. यश चोपड़ा के बारे में उन्होंने बोला. I went to यश चोपड़ा and बोला मैं आज रोड पे आ गया हूँ, मुझे एक मौका देना. एंड यश चोपड़ा ने उनके लिए वो पिक्चर बनाया, एक फेमस पिक्चर. और उसके बाद अमिताभ बच्चन रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ, यू नो, बैक टू एक्टिंग. उसके बाद उनको केबीसी मिला. तो ही शेयर्ड हिज स्टोरी. इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल. एंड आई डोंट नो, वन थिंग आई कैन लर्न इज, इवन इन दिस एज अमिताभ बच्चन डेली सवेरे 5 बजे उठ के सेट में जाते हैं. आज भी उनके परिवार में, if at all somebody makes big money, it is Amitabh Bachchan. And if somebody is competing with Shah Rukh Khan and Salman Khan and other people, it is Amitabh Bachchan. हर बोलते एक एडवर्टाइजमेंट उन्होंने छोड़ा नहीं, सब एडवर्टाइजमेंट में आ जाते हैं. तेल का एडवर्टाइजमेंट, इसका एडवर्टाइजमेंट, सबका एडवर्टाइजमेंट. बोलते हैं मुझे एक आता है एक्टिंग करना, अगर एडवर्टाइजिंग वाला को आने दो मैं करता हूँ. अगर वो केबीसी बोलता है एक्टिंग करो मैं करता हूँ. फिल्म में करना है तो मैं करता हूँ. That's the kind of thing that he was doing. So I learned from him his commitment to your profession, commitment and focus. Thank you, Venki, on that excellent answer. और एक सवाल था, क्या हम लोग हमारे यूथ और हम सभी जिंदगी में हर चीज मन के जैसे नहीं होती है, और छोटे मोटे भी प्रॉब्लम आ जाते, फेलियर आ जाते तो हम लोग थक जाते, बोलते यार ये तो बड़ा कठिन काम है, हमसे नहीं हो रहा है, वी शुड गिव अप. और हम हमारे कंफर्ट पोजीशन में, जो गुड पोजीशन होती है उसमें आ जाते हैं. हम वापस कोशिश ही नहीं करते कि हमको ग्रेट बनना है. आपका तो लाइफ में इतना फेलियर्स भी आया नहीं, यू रोज अगेन. जो 2008-9 में आप बात कर रहे थे, 2 भाई का झगड़ा, वो बात थी शिवसेना की. और इन लोगों ने, मतलब जो पॉलिटिकल सिचुएशन हुआ उस टाइम पे आपके 350 दुकान ओवरनाइट बंद कर दिए. कंपनी जो आपकी इतनी सक्सेसफुल थी वो रोड पे आ गई. सो मुझे हमारे सब भाइयों के लिए सीखना है कि भाई तुम इतना बड़ा फेलियर को कैसे टैकल करते हो और कैसा टेम्परमेंट मैनेज करते हो, एंड हाउ डू यू फाइंड अ वे एज अ लर्निंग टू अदर पीपल. क्योंकि ओवरनाइट साला पूरा आरे का 350 दुकान बंद हो गया. मैन हु इज डूइंग वेल, इन्वेस्टमेंट बैंकर लगे हुए, ओवरनाइट रास्ते पे आ गया. तो हाउ डू यू मैनेज दैट काइंड ऑफ स्टफ, वेंकी? One important thing is I want to say about हमने द्रौपदी वस्त्रारण देखा है महाभारत में. में द्रौपदी वस्त्रारण होता है, यू नो. तो दुशासन आके द्रौपदी का साड़ी निकालता है, यू नो, खींचने लगता है. एंड द्रौपदी रोती रहती है और उसका साड़ी के ऊपर उसका हाथ होता है, ऐसा पकड़ के रहती है, दोनों हाथों से साड़ी का पल्लू पकड़ती है और कृष्णा को बुलाती है, ए कृष्णा हेल्प मी, ए कृष्णा हेल्प मी, कृष्णा आके मुझे मदद करो. बट उसका साड़ी के ऊपर हाथ रहता है या ऐसे रहता है, ए कृष्णा हेल्प मी, ए कृष्णा हेल्प मी, ये पोजीशन में. तभी कृष्णा नहीं आता है. तो कृष्णा नहीं आता है बिकॉज दिस इज 99% फेथ. व्हाट डू यू कॉल इट? 99% फेथ. कृष्णा नहीं आया. जिस वक्त द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ छोड़ दिया और ये 100% फेथ दिखाया, तब जाके कृष्णा आया. तो लाइफ में फेथ इज इंपॉर्टेंट. आप सब रोड पे आ जाओगे, सब भी आ जाओगे, डू यू हैव 100% फेथ? और जिस दिन आप 100% फेथ होएगा तो उस दिन कृष्ण प्रकट हो जाता है. और कृष्ण जिस दिन प्रकट हो जाता है, नासिक से एक फ्रेंचाइजी तुम्हारे दरबार में आके बैठता है और बोलता है मुझे नासिक में दुकान खोलना है, और नासिक का दुकान से हमारा नया जर्नी चालू हो जाता है. सो फेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फेथ
हैविंग फेथ। हमारे 3000 भगवानों के ऊपर, कोटि कोटि भगवानों के ऊपर फेथ है, बट तुम और तुम्हारे सपने के ऊपर फेथ नहीं, तो देयर इज नथिंग। सो फेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड। मिलिंद शाह, मिलिंद भाई क्वेश्चन पूछेंगे? Yeah. Venki, it is so inspirational and really amazing. I mean, every word you spoke is literally a lesson to all of us here. And you mentioned about your wife. We happened to work together during COVID times for quite a bit of time. And the kind of lady and the kind of inspirational and motivational, everything, she got amazing qualities. So we worked together for your some Mumbai projects. And somewhere in Aurangabad, and then some point of Nasik. But trust me, she's an amazing lady. I mean, you are fortunate to have such a I spoke to somebody from Jito Nasik. It was you? Yeah. Milinda, we are very honored and thank you. Yeah. But I mean, I have a lot to learn from both of you actually. And trust me, she's got such a wonderful. How can I don't have words to capture, but she was so intense when she wanted to help people around. She was so intense. So, and when all the shops opened, then she said, I want to send you a vada pav. So my kind regards to her. But truly a really wonderful story. And I have lots of learnings today. And Sanjay bhai, thank you so much for getting Venki here on board. And of course, Hemant bhai and everyone had worked really hard to get you here. So my kind regards to Asha, please. Very lovely, Milind bhai. I heard about you, and she was constantly in touch with you. Yeah, absolutely. Yeah. So Asha, during that time, काफी मदद हुआ था आपका और उनका बीच में. Yeah, काफी. Lot of donation. Yeah. So, Venki, this Nasik chapter is simply amazing. तो कोविड टाइम में हमारे नासिक के जो कोर कमिटी सतीश भाई हिरन और शांतिलाल जी बापना, इन्होंने भी कोविड में जो चैरिटी वर्क किया था for everybody else, that was simply amazing. They took quite the lead and serving the needy people in all sorts of aspects. So Jito was a leading organization in supporting the needy people across the country, but in particular Nasik as well. और मनी अभी मिलन भाई ने आशा के बारे में कहा. आशा हैज बीन टू नासिक मेनी टाइम्स. आशा कि मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, पर आशा अपने इवेंट में काफी बार आती है. शी इज अ फाइटर. शी सर्वाइव्ड अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज ऑफ कैंसर, 3rd stage cancer. She is a super fighter. I have never seen a lady like her. Just like Venki, who never gave up, and she had the faith and hard work, and she came back out of it now after a 2 years fight with the cancer. तो उनकी स्टोरी भी बहुत अमेजिंग स्टोरी है. Actually, Sanjay bhai, I have a suggestion. You can arrange one session with Asha also. Yes, आशा को भी हमको लाना है हमारे मंच पे. और अपने नासिक लेडीज विंग भी बहुत उनसे इंस्पायर हो जाएगी, हम भी इंस्पायर हो जाएंगे. और अमेजिंग लेडी है. और मैं पूछना चाहूंगा कमलेश भाई कोठारी, सतीश भाई हिरन, किसी को क्वेश्चन है? We need to ask questions that will help our community. अभी वोट ऑफ थैंक्स करते हैं संजीव टाइम के हिसाब से. चलो परफेक्ट. वेंकी, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन शो. We're going to have a vote of thanks from Manoj Jangda. He is our co-convener. और thank you very much again. Thank you. Manoj. Hello. Yes. कमलेश दादा बोला ना तुम्ही. हेलो. हाँ, आप सुन रहे हैं मुझे? यस कैरी ऑन. हाँ जी वेंकी, बहुत जबरदस्त सेशन हुआ. हाँ वेंकी, मेरा एक सवाल भी था. थोड़ा मैं सवाल पहले एक आधे मिनट के लिए लेके, जो आपने जो सवाल पूछा था संजय भाई ने, वही मैं पूछ रहा हूँ आपको. संजय भाई ने जो पूछा था कि एक दिन में, एक रात में अगर 350 शॉप बंद हो जाते हैं और आप रास्ते पे आ जाते हो, तो वो वहां का उस टाइम का जो साइकोलॉजिकल और सब बातें जो है, आपने फेथ की बात बोली, आपने वो आंसर जरूर दिया. लेकिन जो सवाल पूछा था संजय भाई ने, वो सब यूथ के लिए और सबके लिए. फेथ तो है, फेथ तो हम रखेंगे, लेकिन वो जो इतना बड़ा जो ब्लंडर है, इतना बड़ा जो एक रात में जो होता है, वो आप किस तरह से उसको हैंडल किया और वो उसको किस तरह से आपने फेस किया,
वो थोड़ा आप अगर बताएंगे सबको तो वो सबके लिए अच्छा होगा, अगर आप बता सके तो। देखिए तो वन इम्पोर्टेंट थिंग इज पॉलो कोएल्हो का बुक में एक सिंपल सेंटेंस है, the story of the world is written in one single language, that is courage, courage, courage. दुनिया का जो भी स्टोरी लिखा है, that स्टोरी का एक ही एक लैंग्वेज में वर्ड लिखा है, उसको बोलते हैं करेज, करेज, करेज एंड करेज. तो somewhere I have seen that without courage, महात्मा गांधी का स्टोरी इज करेज, मदर तेरेसा स्टोरी इज करेज, धीरूभाई अंबानी स्टोरी इज करेज, धोनी स्टोरी इज करेज, यू नो. सो आई थिंक दैट वर्ड को एज एंटरप्रेन्योर्स हमको पकड़ के रखना चाहिए दिल में. फेथ एक इंपॉर्टेंट है, करेज एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. तो समवेयर इट वाज देयर एंड आई हैड अ गुड टीम. आशा वाज सपोर्टिव एंड एक सपना बहुत पैशनेटली देखा था, तो मुझे मालूम था इतना आसान से मरेगा नहीं. आई ऑल्सो वांट टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. ओके, तो आपको मैं कोलंबस का एग्जाम्पल देता हूँ. अभी कैसा हो गया, कोलंबस वांटेड टू कम टू इंडिया और जापान, और इतनी कोलंबस को इंडिया और जापान आना था, और उस गोल्ड ढूंढ के और स्पाइसेस ढूंढ के उसने अमेरिका ढूंढ लिया. एंड अमेरिका वाज हिज बिगेस्ट मिस्टेक. उसको इंडिया आना था, वो पहुंच गया अमेरिका. तो अमेरिका वाज हिज बिगेस्ट मिस्टेक एंड एवरीबडी सेड ही डिड द बिगेस्ट मिस्टेक फॉर 25, 30, 40 years. But isn't America beautiful? Isn't America beautiful? So when you have a knowledge of history, हमने आर्य किया था सबसे बड़ा मिस्टेक, तो मुझे किधर तो लगा था कोलंबस ने सबसे बड़ा मिस्टेक किया, and that mistake turned out to be beautiful. Can this आर्य mistake turn out to be beautiful? Yes, because we did mistake. क्या हुआ, पूरा मीडिया ने हमको कवर किया, पॉलिटिक्स ऑफ वड़ा पाव को कवर किया, और उसने साथ साथ पूरा मीडिया ने किसको कवर किया, गोली वड़ा पाव का 350 आर्य बूथ को कवर किया. और उसके वजह से जी टीवी ने दिखाया, न्यूज लोकसत्ता ने दिखाया, सकाल ने लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जिसके वजह से हमको ऑल ओवर इंडिया 5000 इंक्वायरी आ गया और 300 दुकान लग गए. तो किधर तो वो एक हिस्टोरिकल नॉलेज था कि मिस्टेक्स कैन बी ब्यूटीफुल. आर्य की वजह से सबने बोला मिस्टेक. तो आई थिंक आई वांटेड टू यूज हिज फेथ, करेज एंड कोलंबस लेसन्स. दैट ऑल हेल्प्स यू इन, यू नो, एक हैविंग अ फिलोसॉफिकल माइंड. ग्रेट, गुड. हाँ, तो आपने मुझे आभार प्रदर्शन का इस गुड टू ग्रेट कमेटी का जो कंट्रीब्यूशन है वेंकी, ये पूरे इंडिया में गुड टू ग्रेट की वजह से पहला जो प्रोग्राम था वो दुबई में हुआ था, और उसके बाद दुबई से पूरे विश्व में और पूरे देश में जो नासिक जो जाना गया वो गुड टू ग्रेट कमेटी के बाद है. और वहाँ की जो कमान है, सतीश भाई पारक ने यहाँ से जो शुरुआत की थी, उसकी कमान दुबई में संभालने का काम संजय ने किया था, और संजय ने आपको अभी बुलाया. आपकी मेरी आशा भाभी की मुलाकात एनईएफ के प्रोग्राम में हुई है, और हम लोग काफी टाइम साथ में थे, आपको अगर याद आता होगा तो. या आपका चेहरा एकदम याद है मुझे. आशा भाभी के साथ मेरा उसके बाद कम्युनिकेशन भी था, थोड़ा सा पिछले एक आधे साल में बंद हो गया था. मैं इंजर्ड था, इसलिए मैं ही अवेलेबल नहीं था. तो मैं आपको ये मतलब आपकी जो ब्रांड बनाने का, मतलब जिस टाइम में आपने शुरुआत किया ब्रांड बनाने का, कौन बनाएगा, तो वेस्टर्न कंट्री या फॉरेनर या अमेरिकन लोगों ने ही बनाना चाहिए. ऐसे टाइम में आपने जो नेस्ले या पीएनजी या यही ब्रांड बनेंगे, वो ऐसे समय में आपने जो शुरुआत किया और इतना जोरदार शुरुआत किया कि जहां जिसको 56 टिकली, मतलब वड़ा पाव, वड़ा कौन बनाएगा तो 56 टिकली वाला बनाएगा, और वो ब्रांड आपने जो बना के दिखाया, ये बहुत ही बड़ी, मतलब गुड टू ग्रेट के लिए सही में बहुत अच्छा मतलब शुरुआत है ये हमारे लिए. और जो आपकी जो बिटवीन द लाइन्स है वो हम सबके लिए बहुत उपयुक्त है और बहुत बहुत काम में आएगी, क्योंकि हम सब लोग यहाँ से जो कोई एक ग्राफ जो है वो ऊपर नहीं रहता है, हमेशा वो नीचे ऊपर रहता है. तो वो नीचे ऊपर के ग्राफ में जब नीचे जाता है, तब जो लर्निंग है वो आपसे बहुत अच्छे हमें सीखने को मिले, बहुत ज्यादा. और सोचते वक्त भी आप जो बोल रहे हैं कि सोचते वक्त भी, ये जब आप एंटरप्रेन्योर में बाथरूम तक भी सोचना चाहिए, लेकिन एक्शन के टाइम में जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात जो आप कर रहे हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग भी आपका कैसा है कि मतलब सॉल्यूशन भी आपने कहाँ से लिए, कि जो सरदार के ऊपर पूरे देश में जोक होते हैं, वो सरदार से आपने बड़ा सॉल्यूशन निकाला, मतलब वो सरदार की तरफ से आपने सॉल्यूशन निकाला. तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का आपका जो है वो दिख रहा है बहुत अच्छे से. तो ये जब आप जो एंटरप्रेन्योर की जो व्याख्या आपने दी है, वो सही में हमारे लिए सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, कि जहाँ ताला बंद होता है, जहाँ ताला लगता है, जहाँ दरवाजा बंद होता है, वहां से आगे जो चैलेंज होते हैं, तो वहां से आगे दिमाग चलना चाहिए. और ये क्रिटिकल थिंकिंग का हमें सबको बहुत ज्यादा उपयोग होगा, ऐसा मुझे लग रहा है. बहुत बढ़िया. तो आपका ये मतलब गुड टू ग्रेट कमेटी के लिए जो आपने जिस तरह से ये सब आपका जो एक्सपीरियंस है, वो आपको कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं. आपका एक्सपीरियंस तो हमें मतलब डायरेक्टली जो आपका
एक्चुअल एक्सपीरियंस है उससे सब मिल जाता है, और वहां से जो हमें मिला है इसके लिए आपके बहुत बहुत आभार। मतलब मैं आभार आपके कैसे मानूं, मतलब मैं आपको इसमें आभार मानने के लिए सही में अगर वैसा देखा गया तो हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं एक 2 लाइंस में आपके आभार मानना चाहता हूँ कि ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि 1000 किताब पढ़ के या 10,000 किताब पढ़ के भी जो नॉलेज नहीं आएगा वो आपके रियल लाइफ की स्टोरी से आता है। तो आपके पास है किताबों का भंडार, आपके पास है किताबों का भंडार, ज्ञान देकर हमने आपको दिया है आधार। अब निश्चित रूप से करेंगे हम हमारे में सकारात्मक सुधार, व्यक्त करने आया हूँ आपके आभार, और हम सबके आभार, जहां जिसने लाया है जीतो कमेटी और सभी के मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, sir. Can I ask a question to Venki sir, please? Yeah, please, Archana. Yeah, sir, वड़ा पाव तो आपने बना लिया, बट अभी नाउअडेज फ्लाइट में भी जैन फूड मिलता है, तो आप जैन वड़ा पाव के बारे में सोच सकते हो क्या? या सोचा है, तो ओनली थिंग क्या वो केले से बनता है, तो केले से जब बनता है तो केला छिलने का जो पोटैटो का साथ जो होता है ना मशीन, वो एक हो गया, तो केला छिलने का एक अलग प्रोसेस है। फ्यू पीपल आर सजेस्टेड टू मी, वी हैव एक्सपेरिमेंटेड, बट उसका एक वॉल्यूम के लिए एक करना है, या इट्स देयर इन माइंड। ह्यूज रिक्वेस्ट, आपने सही सवाल पूछा। हाँ, तो थोड़ा हम लोग भी चख ले वड़ा पाव क्या होता है, जैन लोग भी थोड़ा चख ले तो ज्यादा मजा आ जाएगा। अरे भाई वेंकी जी, अर्चना जी के लिए आप केले का वड़ा पाव बनाना चालू ही कर दो भाई। फ्रेश बनाया है, बट फ्रोजन मशीन पे बनने के लिए वो लाइन पे ना केला काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, छिलना। नहीं, आपने जो टाइप का फायर का सॉल्यूशन निकाला, तो इसका सॉल्यूशन भी आप पक्का निकालेंगे ऐसा होप करते हैं, और जल्दी हम जैन वड़ा पाव आपसे खरीदना चाहते हैं। धन्यवाद अर्चना जी। Yeah, thank you. Nothing else, Manoj bhai, thank you for that great vote of thanks. Thank you Jito Nasik for organizing the program. Thank you all for joining. Jai Hind, Jai Mahavir. Kamlesh bhai, Jai Hind. Yes. Thanks. Thank you Venki. Thank you, Venki. Bye bye. Bye. वो डब्बो दे वाटणे जरा. कंट्रोल आणि अजून एक काय